अबाउट इनामल, ठीक है, वो फर्स्ट लेयर होती है जो टीथ पे। यूजुअली ऐसा होता है क्या कि वो अब घिसने लग रही है, बिकॉज ये सब हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं कि वो घिस रही है क्या आजकल? टूथपिक इज रियली हार्मफुल फॉर योर टीथ एंड गम्स एज वेल। Okay. तो दो टीथ के बीच में जो फूड लॉजमेंट होता है, मोस्टली कैविटी स्टार्ट फ्रॉम बिटवीन द टीथ। Between the teeth. तो अगर हम उसमें सिंपलेस्ट पेस्ट वो यूज करें, कोई सेंसिटिविटी टूथपेस्ट यूज नहीं करना है, कोई लौंग का तेल यूज नहीं करना है, कुछ भी यूज नहीं करना है, बिकॉज जो गम्स होते हैं वो वेट गॉज से साफ करना चाहिए। जैसे ही फर्स्ट टूथ इरप्ट होता है तो फिंगर ब्रश आते हैं, उससे सिर्फ पानी से क्लीन करना होता है, कोई पेस्ट यूज नहीं करनी होती। जितना हम रॉ खाएंगे उतनी स्ट्रॉन्ग हमारे टूथ, हमारा जॉबोन बनेगा, और जितना रिफाइंड हम खाएंगे उतनी प्रॉब्लम्स हमारे लाल मंजन होते हैं, जिससे लोग रोज सुबह अपने दांत साफ करते हैं। तो वो बहुत हार्मफुल होता है आपके दांत के लिए, क्योंकि वो आपकी एनामल लेयर को डैमेज करता है। Thank you so much, Anjali ma'am and Siddharth sir, for being here. And first of all, I would like you guys to tell about yourself to audience. आप लोग कौन है, कब से आपने डेंटिस्ट्री स्टार्ट करी, पैशन था, क्या था, जॉब, your previous jobs, and right now you're doing into some business. So what are all that? Okay, so I am Dr. Anjali. So my journey started in 2004 when I joined Manipal College of Dental Sciences. उससे पहले I was like कि मुझे क्या करना है. So my brother told me कि why don't you become a doctor, and then that was my goal, to become a doctor. So I got admission into Manipal University. There I studied. Then after that I did my residentship from Maulana Azad College, Delhi. Okay. And my specialization in implants from Indore GDC College, and I started practicing after that. Okay. So I am into private practice since then. Then I did my fellowship from US in implantology itself, and it's been 14 plus years that I'm practicing. Nice. To you, sir. So about me, I started my journey in 2003 when I joined Manipal College of Dental Sciences, Manipal. As a kid, I was always fascinated to be a doctor or into a profession which would help other people, and that fascination definitely pushed me to go for NEET exam and then go for something which would be helpful. But then at the beginning of the scenario, when I started giving exams, there were many exams, and I could crack only one or two. But then I got the opportunity to join one of the best college of India, and I was very happy to take admission as a dentist. And then it started from there. I finished my BDS in 2008. Then I joined mastership in orthodontics in 2009 and finished that in 2012 in the same college, Manipal College of Dental Sciences, Manipal. Then I got the opportunity to work as a faculty in the same college, and I worked there for 5 years. Then I shifted back to Jaipur in 2017. And then I have been working there in Mahatma Gandhi Dental College and Hospital since 2017 to the present date as professor at the post of professor right now, and also as a freelance consultant orthodontist at my clinic and other clinics as well. So you just told us a word, orthodontics, right? तो ये डेंटिस्ट्री से अलग क्या होता है orthodontics, इसका थोड़ा सा आप मतलब समझाओ प्लीज. So orthodontics is that branch जो दांतों के और पोजीशन और जॉ के अलाइनमेंट या पोजीशन से डील करता है. डेंटिस्ट्री इटसेल्फ हैज 9 डिफरेंट ब्रांचेस. उसमें से एक ब्रांच ऑर्थोडोंटिक्स है, और वो स्पेशली डील करती है दांतों की पोजीशन और अलाइनमेंट से. मोस्टली पीपल आज की डेट में अपनी स्माइल से रिलेटेड बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है, एंड दे ऑल ऑफ अस वांट कि हमें एक अच्छी स्माइल मिले. सो बेसिक अलाइनमेंट करेक्शन जो है वो ऑर्थोडोंटिक्स या ब्रेसेस, जो इनिशियली पहले ब्रेसेस था ट्रेडिशनली, और आज की डेट में अब अलाइनर्स भी उसमें ऐड हो गए हैं. तो उस तरीके से मतलब ये ब्रांच हेल्प करती है. सो
आपका ये ड्रीम था क्या बचपन से कि नहीं आप सोच रहे थे क्या करूं एंड देन यू गॉट द फील्ड? See, the thing is, I'm from a business family. ओके. तो business family में ज़्यादा पढ़ते नहीं है लोग. But मेरा झुकाव थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ था. So my brother thought कि तू तो कुछ कर ले, तू तो डॉक्टर बन जा. तो from there I got that dream कि अब मुझसे किसी ने कुछ बोला है तो I should follow that. और मेरा कभी भी ऐसा नहीं था, मुझे हमेशा से डेंटिस्ट ही बनना था. That was my passion कि मुझे डेंटिस्ट ही बनना है. And luckily I got the admission the best college of India, Manipal University. And so yeah, my dream came true. And when I got the admission in Maulana Azad College, that was the मतलब वो मोस्टली डेंटिस्ट का ड्रीम होता है कि मौलाना आजाद में एक बार प्रैक्टिस करने को मिल जाए, which I got the opportunity through an exam. So that was a big achievement for me. So Manipal is considered as the best name in the dental. Yeah, private universities. Okay. Private universities, it is one of the best colleges. Yeah, and Maulana Azad government में best माना जाता है. Okay. So, and yes. I guess you both meet in the same college in Manipal. Yeah, no, we have. What's that story? So the story is really interesting. कि he is my senior, but he was in Manipal branch and I was in Bangalore branch. तो हम लोग कभी मिले ही नहीं वहाँ पे. Okay. And जब ऐसा होता है, शादी की बात होती है, तो एक पंडित ने हमें मिलाया था. अच्छा. And तब हमें पता चला कि he was in Manipal and I was in Bangalore. Okay. So most of the people think it's a love marriage. Yeah. But it's arranged cum love marriage. Nice. Yeah. So you both come from the same background, same knowledge, right? आज के टाइम में सेम फील्ड में काम करना, like as a couple, ये कैसा लगता है? Because अगर मैं अपने मम्मी पापा को देखता हूँ तो वो they're all in the business, ठीक है, बट बहुत लड़ते हैं, ठीक है, चाहे कस्टमर्स हों उनके आगे बातचीत करना, चाहे घर पे हो, फिर वो सारी वही बातें कि ये नहीं किया वो नहीं किया, घर जाके वहाँ जाके वो करना है, वहाँ जाके वो करना है, ऑफिस में ये करना है. आपके बीच में कैसा होता है ये सब? So ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग वो है. So मेरे भैया ने मुझसे पूछा तुझे कैसा लड़का चाहिए. So I thought because touchwood I was good in my clinical practice, तो मुझे पता है कि I can manage anything except ortho. Okay. That means braces. Okay. So मैंने उनको बोला मुझे braces orthodontist से शादी करनी है, जयपुर में होना चाहिए, उससे शादी करनी है. So कहते यार तेरी शर्तें बड़ी अजीब है, orthodontist ही चाहिए. खूब सारे रिश्ते आए, फिर then finally उनका रिश्ता आया. He was from Jaipur and orthodontist. मैंने कहा डन है. And at clinic we have divided our work. Okay. I mostly focus on braces. Okay. And she manages other aspects of dentistry. Okay. Nice. So, तो एकदम clashes नहीं. बैलेंस काम है, अलग अलग काम है. Nice. ऐसा यूजुअली मैंने देखा है कि अंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे आप सीनियर हैं, आप जूनियर हैं, ठीक है, और वो चीज़ किसी और फील्ड में होती है ना, तो वो शायद घर में क्लैशेस करती है वो चीज़ कि नहीं यार आपको मेरी सुननी पड़ेगी, कि आप तो मेरी सुनते ही नहीं हो कभी, क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा चलता है ये सब. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स कि अगर हम डेंटल हाइजीन की बात करें, ठीक है, तो एक बेसिक डेंटल हाइजीन कैसा होना चाहिए, बेसिक आइडियल डेंटल रूटीन क्या होना चाहिए? So in that way अगर कोई भी मतलब पर्सन अपनी अच्छी हाइजीन रखना चाहता है तो he or she should brush twice daily. Okay. It is always a rule of 2. चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, एटलीस्ट बच्चे के लिए तो ये है कि रूल ऑफ 2 ये है कि 2 minutes and twice a day. Okay. सेम वे बड़े भी twice daily और 2 मिनट से थोड़ा ज्यादा, बट एटलीस्ट उतना टाइम तो होना ही चाहिए ब्रशिंग का. सिर्फ जल्दी जल्दी करके खत्म नहीं कर देना है. और उसके अलावा हम अपनी ओरल हाइजीन या अपनी गम्स की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए सबसे कॉमन घरेलू नुस्खा है वार्म सलाइन गार्गल्स. मतलब गर्म गुनगुने पानी में या पिंच ऑफ सॉल्ट डाल के अगर हम कुछ 2 या 3 बार 2 बार भी अगर गार्गल्स कर लेते हैं तो ये एक बेसिक एडिशनल हेल्प हो जाती है जो गम्स को हेल्दी रखने में हेल्प करती है. Okay. तीसरी चीज जो मोस्टली लोग मतलब वेस्ट में यूएस वगैरह में बहुत कॉमन है बट इंडिया में अभी उतना कॉमन नहीं है, वो है फ्लॉसिंग, जो कि दांतों के बीच में सरफेसेस को क्लीन करने में सबसे हेल्प देती है. तो ओवर द काउंटर अलग अलग कंपनीज के अलग अलग फ्लॉस वगैरह मिलते हैं जिसको एक थ्रेड जैसा बोलते हैं और उसको थोड़ी लेंथ ऑफ थ्रेड को लेना होता है
और हमें उंगलियों के बीच में उसको होल्ड करना होता है और हर सेक्शन ऑफ द टीथ के अंदर आगे पीछे थोड़ा थोड़ा मूव करना होता है, टेकिंग केयर कि हम अपने गम्स को हर्ट नहीं करें. ओके. सो इफ दिस इज डन तो आपकी मेजर डेंटल प्रॉब्लम्स काफी हद तक मैनेज हो सकती है. इट्स नॉट अबाउट जो ऑलरेडी है वो ठीक हो जाएगा, बट इट मे नॉट अलाउ प्रोग्रेशन ऑफ द कैविटी या कुछ और. एंड विद द एडवांस टेक्नोलॉजी आजकल वाटर फ्लॉसेस भी आ गए हैं, बिकॉज फ्लॉसिंग थोड़ा सा टीडियस जॉब हो सकता है बैक टीथ के लिए, तो वाटर फ्लॉसेस पीपल कैन यूज. और नाइट टाइम में इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू फ्लॉस योर टीथ एंड स्लीप. व्हाट आर वाटर फ्लॉसेस, मतलब किस तरीके से काम करते हैं? सो वाटर फ्लॉसर मशीन होती है एक, जिसमें हम पानी भरते हैं, उस पे टिप होती है, तो पानी के प्रेशर से, जैसे जेट होता है ना, एक प्रेशर से पानी आता है, वैसे ही वाटर फ्लॉसर में प्रेशर से पानी आता है. ईच टूथ में अगर हम रख के उस पानी को चलाते हैं तो दो टीथ के बीच में जो फूड लॉजमेंट होता है, मोस्टली कैविटी स्टार्ट फ्रॉम बिटवीन द टीथ, तो अगर हम उसमें वो वाटर फ्लॉसर से क्लीन करेंगे तो ये केरीज हम अवॉइड कर सकते हैं. And what's the cost of this water floss? So it depends on the company. Mostly it starts from 1500 and goes up to 4000, 5000. Okay. It's easy to use. ये safe है use करने के लिए? Yeah, it's safe. It's safe. Okay. मल्टीपल टिप्स भी आते हैं, तो आप अपनी डेजिग्नेट कर सकते हैं, तो फैमिली मेंबर्स भी एक साथ यूज कर सकते हैं. सो वन फ्लॉसर कैन बी हेल्पफुल फॉर अ फैमिली आल्सो. एंड जब वो खत्म हो जाए या खराब हो जाए तो फिर आप मल्टीपल दूसरी टिप्स ऑर्डर कर सकते हैं. आजकल और बहुत पहले से जो हमारे इंडियन रूटीन में जो एक चीज है जो हर बोलेंगे FMCG स्टोर पे मिलती है, दैट इज टूथपिक. हाउ बैड इज इट, हाउ गुड इज इट? वो यूज करनी चाहिए कि नहीं यूज करनी चाहिए? So toothpick is really harmful for your teeth and gums as well. Okay. अगर आप टूथपिक यूज कर रहे हैं तो जो फूड लॉजमेंट है वो तो उस वक्त के लिए you'll get a temporary relief. Yeah. लेकिन उससे आपके टूथ का बोन लॉस हो रहा है. Okay. है ना? अगर बोन लॉस हो रहा है, जैसे नींव होती है ना, घर की जो नींव होती है, अगर वो मजबूत होती है तो घर मजबूत होता है. वैसे अगर हमारे दांतों की हड्डी मजबूत होती है, गम्स मजबूत होते हैं, तो ही आपका दांत रुकेगा, नहीं तो वो गिर जाएगा. Okay. सो टूथपिक जितना हो सके अवॉइड करिए और उसकी जगह फ्लॉस से यूज करिए. टूथपिक इट्स अ बिग नो. इट्स अ बिग नो. जेन्युइनली इट्स अ बिग नो. तो वो क्या टीथ के अलाइनमेंट को बिगाड़ता है इधर उधर? नहीं, बोन लॉस कर देता है. लाइक हमारे जो दांत हैं बोन के अंदर है ना, और उसके ऊपर गम्स है. तो पहले क्या करता है, टूथपिक गम्स को डैमेज करता है और फिर अंदर जाके वो टूथपिक अपना स्पेस बनाएगा ना. अगर आप नॉर्मली टूथपिक डालोगे तो आप वो अंदर नहीं जाएगा. लेकिन आप जब बार बार एक जगह पे पिंच करेंगे तो वहां पे धीरे धीरे गम्स डैमेज होंगे. जहां गम्स डैमेज हुए वहां आपका बोन लॉस स्टार्ट हो जाता है. Okay. गम्स का लेवल वहीं तक रहता है जहां तक आपके बोन का लेवल वहीं तक रहता है जहां तक आपके गम्स हो. अगर आपके गम्स डैमेज तो आपका बोन लॉस 100% गारंटी है. Okay. तो दांतों से ज्यादा गम्स की आपको देखभाल करनी चाहिए. ऑल्सो जो प्रेशर हम लगा रहे हैं अपने हाथ से या फिंगर से, वो भी कैलिब्रेटेड नहीं होता. हम बहुत जोर से लगा देते हैं उसको हटाने के अर्ज में, वो ज्यादा डैमेजिंग हो जाता है. उसके बेटर तो फिर फ्लॉस करना बेटर है अगर दांत के बीच में कुछ फंसा हुआ है. बट यूजुअली किसी भी आप बहुत अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट में भी चले जाओ ना, वहाँ पे टूथपिक मिलती है. बिल्कुल. आई थिंक वी शुड चेंज दिस कल्चर. इंस्टेड ऑफ अ टूथपिक वी शुड प्रोवाइड अ फ्लॉस. हाँ, बहुत सारे आई गेस मेरे घर में भी एक काइंड ऑफ एक प्लास्टिक का वो नॉब आता है, उसके पीछे फ्लॉस होता है और आगे कोना होता है ना, वो भी रख सकते हैं. वो रखा जा सकता है. वो प्लास्टिक होता है, दैट विल नॉट डैमेज योर टूथ. बट टूथपिक वुडन होता है, तो दैट विल डैमेज योर टूथ फॉर श्योर. और हाउ ऑफन, मतलब इंडिया में तो मैंने नहीं देखा अभी तक अपनी फैमिली में भी कि इतना ज्यादा हम जाके डेंटल चेकअप्स कराते हैं. तो एक नॉर्मल फैमिली को अगर वो स्टार्ट करे, लाइक कोई बेबी हुआ है, तो कब से उनको जाना चाहिए किसी डेंटिस्ट के पास चेकअप्स के लिए, और क्या रेगुलरिटी होनी चाहिए? अगर छोटे बच्चे की बात करें तो उसे सबसे पहले तब ले जाना चाहिए जब कोई पहला दांत इरप्ट हो, मतलब समवेयर अराउंड 1.5-2 साल के आसपास या 2.5 साल के आसपास. 6 to 7 months में पहला टूथ आता है हमारे इरप्ट करता है. Okay. तब हमारा पहला चेकअप होना चाहिए. और उससे पहले वेट गॉज, जैसे बच्चा फीड करना चालू करता है तो वी शुड मेक इट अ पॉइंट कि हम
वेट गॉज से उसके गम्स को क्लीन रखें, और जैसे फर्स्ट टूथ इरप्ट होता है तो एक डेंटल चेकअप करा ले। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो चेकअप हो जाता है आपके जो अंदर के गम्स है वो प्रॉपर है या नहीं है, और हम ये भी चेक कर लेते हैं कि अंदर की जो ग्रोथ है या कोई और हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं बेबी में, तो दैट कैन बी डिटेक्टेड एट अर्ली एज। एंड जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है तो 1.5 से 2 साल में उसके सारे दांत आ जाते हैं, तो एक रेगुलर चेकअप 6 मंथली होना चाहिए बच्चों का, इवन एडल्ट्स फॉर दैट मैटर। 6 to 7 months के आसपास, हर मतलब साल में 2 बार अगर आप डेंटिस्ट के पास चले जाओ वो हो सकती है, बट मतलब ये है कि उस दौरान एटलीस्ट चेकअप हो जाए तो बेटर रहेगा। कभी कभार किन्हीं बच्चों के जन्म से ही दांत होते हैं, तो उनके लिए भी ऐसा होता है कि तब तो पहले ही एक बार चेकअप जरूरी है, क्योंकि वो कभी कभार वो दांत जो है वो फीडिंग के वक्त दिक्कत देते हैं, तो व्हाट इज टू बी डन, नॉट टू बी डन, वो डेंटिस्ट आपको गाइड कर सकते हैं। अभी जो नए जनरेशन जो अभी आ रही है उसमें यूजुअली हमने ये देखा है कि बच्चों के दांत या तो ठीक नहीं आ रहे या आड़े टेढ़े आ रहे हैं। इसका क्या क्या रीजन है? लाइक फूड एक मेजर रीजन है या और कोई भी रीजन है? या सो आई विल टेल यू दैट पहले के जमाने में हम कच्चा खाना खाते थे, मतलब हमारे यहाँ एंसेस्टर्स को देखेंगे तो रॉ खाना खाते थे, तो उसमें ये जॉ बहुत यूज होता था, ऐसे हम चबा चबा के खाते थे, हमारी मसल्स और ये बहुत स्ट्रांग होते थे, तो हमारा जॉ बड़ा होता था, थर्ड मोलर्स विजडम टूथ जिसे कहते हैं वो भी इरप्ट होते थे। अब धीरे 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 हमारा खाना रिफाइंड होता जा रहा है, तो रिफाइंड होने की वजह से हमारी जो च्यूइंग कैपेसिटी है वो स्लो हो गई है, तो धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है। अगर आप देखेंगे मोस्टली लोगों को विजडम टूथ की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा जॉ साइज छोटा होता जा रहा है। धीरे 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 आप देखेंगे इवोल्यूशन में थर्ड मोलर्स आना, विजडम टूथ आना ही बंद हो जाएंगे, और जिनके आ रहे हैं उनको एक्सट्रैक्ट कराना पड़ता है। सो जितना हम रॉ खाएंगे उतने स्ट्रॉन्ग हमारे टूथ, हमारा ये जॉ बोन बनेगा, और जितना रिफाइंड हम खाएंगे उतनी प्रॉब्लम्स हमारे इसमें जॉ में और टूथ में आएंगी। तो वही इसी चीज पे ऐड करते हुए कि आज की डेट में आप बताओ कितने लोग हैं जिनको आपने देखा है कि गन्ना आपने दांत से निकाल, मतलब हार्डली वो किसान टाइप के लोग ही हैं जो ये कर बहुत रेयर है। आप पहले ये बताओ कि आज की डेट में आपने कितनी बार पिज्जा या बर्गर खाया है, और एक छोटा बच्चा जो हमारे एज ग्रुप में है वो आज की डेट में कितना खा लेता है? ऑब्वियसली उनका इंटेक तो बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा, राइट। तो दैट्स द चेंज व्हाट इज हैपनिंग ओवर द टाइम। हम सबका खाने का जो तरीका है ना वो काफी हद तक चेंज हो गया है। हम मतलब जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉपरली कुक्ड चीजें हैं वो ही खाते हैं। फ्रूट्स भी बहुत लोग कई बार अवॉइड करना चाहते हैं, बट ये सब चीजें जो है वो हमारी मैस्टिकेटरी एफिशिएंसी को मेंटेन करती है। तो इवोल्यूशन के साथ आपने देखा होगा कि जब हम अपनी किताबें पढ़ते हैं तो हमारे जो मतलब प्रेडिसेसर्स थे वो जो मतलब मंकी के फेस के पर आपने देखा होगा कि उनके जॉज जो है वो बहुत बड़े थे, बट धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया तो हम रिफाइंड, उस कंपैरिजन में भी रिफाइनमेंट होता गया, तो इवोल्यूशन का फेस जो है इंसान का चेहरा चेंज होता गया। बट अब टूथ का साइज जो है ना वो जो है वो ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा जब से चल रहा है, एक एवरेज साइज के हिसाब से। पर क्योंकि जॉ साइज कम हो गया तो वही टूथ साइज जो है वो उसके अंदर एडजस्ट होना मुश्किल हो गया। इसीलिए जैसे मैम ने बोला कि विजडम टूथ जो है वो कई बार अटक जाता है, वो नहीं इरप्ट कर पाता। नॉर्मली भी जो दांत सारे जबड़े के अंदर आ जाने चाहिए वो भी आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा टेढ़े मेढ़े आते हैं। तो ये मोस्टली विद इवोल्यूशन एंड हमारी डाइटरी चीज है जो अफेक्ट कर रही है। पहले मैंने या तो कहीं पढ़ा है या सुना है, पहले हमारे ज्यादा दांत हुआ करते थे, अराउंड 40-42 ऐसा कुछ काउंट था? नहीं, मतलब ह्यूमन वाज इन एनिमल्स, नॉट इन ह्यूमन में हमेशा 32 दांत ही रहे हैं। इससे ज्यादा होते हैं तो वो एक्स्ट्रा दांत ही कहलाते हैं और वेस्टिजियल ही होते हैं। थर्ड मोलर्स भी आज की डेट में धीरे धीरे करते हुए एज वेस्टिजियल ऑर्गन ही होता जा रहा है। इसीलिए उसका रिमूवल सजेस्ट होता है मोस्ट केसेस। तो आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में अभी जो हमारे 32 से और कम हो गए हैं दांत, वो और कितने कम हो जाएंगे इन कमिंग लाइक 5 years? 28 हो जाएंगे अब हमारे टीथ ना, धीरे 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 धीरे। इफ यू सी यंगर जनरेशंस तो उनके थर्ड मोलर आ ही नहीं रहे या फिर अंदर ही रुक जाते हैं, वो हमें दिखते ही नहीं है। तो मोस्टली विद द एवोल्यूशन हम जो हमारे बच्चे शायद होंगे कि 28 दांत ही पड़े बुक्स में। सो या
और एक और एवोल्यूशन जो हो रहा है इसके साथ में, वो हो रहा है हमारा TMJ का जो प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है. इफ यू सी व्हाट इज TMJ? TMJ इज आवर जॉइंट, Okay. जो हमारे हेड को हमारे लोअर जॉ से जॉइंट करता है ना, इस जॉइंट जैसा ये जो जॉइंट होता है जो हमारे मुंह खोलने में हेल्प करता है, इसको TMJ जॉइंट बोलते हैं. Okay. तो बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एंड द फूड वी टेक एंड द मैल ओक्लूजन, जो आप कहना ना टेढ़े मेढ़े दांत हैं, इन सब चीजों को मिला के, स्ट्रेस लेवल को मिला के, ये प्रॉब्लम्स आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल गई है. ओके, तो ये साइज छोटा होता जा रहा है. Okay. जॉ का साइज छोटा होता जॉ जा का साइज छोटा होता जा रहा है एंड दैट इज लीडिंग टू अदर मतलब Problems as प्रॉब्लम्स well. एज सच. अभी जैसे हम किड्स को देखते हैं आजकल के, इवन आप किसी भी नॉर्मल स्कूल के मिडिल विंग में चले जाओ, राइट, और 5th 6th 7th ये वाली जो एज होती है उनके बच्चों को देख लो. यूजुअली ये होता है कि 70% मुझे ऐसा लगता है उन सब के दांत खराब होते हैं. ठीक है, या तो आगे को होंगे या पीछे को होंगे, दे आर नॉट इवन स्ट्रेट, है ना. तो इस चीज की इंडिया में मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि बहुत कम जो पेरेंटिंग की नॉलेज है वो बहुत लिमिटेड है, बिकॉज वो अपने बच्चों को लेके जा ही नहीं रहे. तो उसकी क्या, अगर मान लो कि ठीक है बच्चा हो गया, बड़ा हो गया, एंड ऑल दीज थिंग्स रिलेटेड टू टीथ एंड योर फेशियल एक्सप्रेशन आपको एक कॉन्फिडेंस अलग देते हैं, राइट. अगर वही चीज नहीं होगी, हो सकता है इनिशियली बच्चों को पता ना लगे, वो इतना फील भी ना करें, बट आगे जाके जब इवन इन 11-12 जब उनको प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं, जब उनको कोई मॉडलिंग या ऐसी कोई चीज़ परस्यू करनी होती है, तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है. तो अगर उस एज में लाइक 8-9 तक की एज में मम्मी पापा ने कभी भी डेंटिस्ट को नहीं दिखाया बच्चे को, तो क्या उनको लेके जाना चाहिए वहाँ पे, और कुछ हो सकता है, इज देयर सम पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि वो ठीक हो जाए? इट ऑल डिपेंड्स कि हम क्या प्रॉब्लम देख रहे हैं. कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो एज स्पेसिफिक होता है. मैलक्लूजन मतलब जो दांतों की पोजीशन गड़बड़ है उसके हिसाब से होता है. तो हमेशा ऐसे कहते हैं कि अगर ऑर्थोडोंटिक कंसल्टेशन डॉक्टर से लेना चाहिए तो वो 7 साल के आसपास फर्स्ट विजिट हो जानी चाहिए उससे रिलेटेड, क्योंकि उस वक्त तक सारे परमानेंट मोलर्स मतलब फर्स्ट मोलर जो होता है वो इरप्ट कर चुका होता है. दांतों की पोजीशन जो है वो ऑलमोस्ट डिसिसिव होती है कि इस तरीके से है. अब इस एज पे जो ऑर्थोडोंटिस्ट है या कोई भी डेंटिस्ट है वो देख के ये बता सकते हैं कि क्या नीचे का जबड़ा छोटा है या बड़ा है. कभी कभार आपने देखा होगा कि किसी का जबड़ा बहुत ही छोटा होता है, तो सही उम्र पे उन चीजों को ट्रीट किया जा सकता है. उनके अंदर अभी ग्रोथ पोटेंशियल बची हुई है, तो हम उसके अंदर कुछ अप्लायंसेस ऐसे दे सकते हैं जिनसे हम नीचे के जबड़े को अगर छोटा है तो ग्रो करा सकते हैं, और अगर नीचे का जबड़ा बड़ा है और ऊपर का जबड़ा छोटा है तो हम ऊपर के जबड़े में कुछ ऐसा अप्लायंस दे सकते हैं जिससे ऊपर का जबड़ा भी आगे आ सकता है. पर वो उस राइट एज पे ही हो सकता है अगर कोई ग्रोथ पोटेंशियल है. If we miss out on that, then later on उसमें थोड़े और मतलब कॉम्प्लिकेटेड तरीके से ट्रीटमेंट्स पॉसिबल तो हैं. जैसे हमें ब्रेसेस तो करने होंगे पर उसके साथ कुछ सर्जरी का ऑप्शन भी कंबाइन करना पड़ सकता है. तो एक अच्छी एज जो है वो 7 से 9 साल के बीच में है कि कम से कम पहली बार वो दिखा जाएं ताकि उसकी प्लानिंग हो सके. और उसके बाद अगर कोई जरूरत है तो डॉक्टर अपने आप उन्हें वो सजेस्ट करेंगे ताकि उनका जॉ ग्रोथ या जॉ की मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू व्हाट इज द प्रॉब्लम की जा सके. सो एज इज अ वन फैक्टर कि हाँ वहाँ पे तो हो सकता है, अगर आप ले जाते हैं तो इट्स टोटली कवरेबल. बट अगर वहाँ पे भूल जाते हैं या नहीं जाते हैं तो फिर वो हो सकता है बट थोड़ा खर्चा भी बढ़ जाएगा और पेन भी ज्यादा होगा, राइट, और टाइम भी ज्यादा लगेगा. 100% करेक्शन पॉसिबल है या नहीं है, या हमें कैमोफ्लेज करना पड़ेगा दांतों को, वो सब चीजें बहुत मैटर करती हैं. इसलिए एज इज अ रियली इम्पोर्टेंट फैक्टर जब हम बच्चों को दिखाते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट को. सो कैमोफ्लेज जैसे मैम ने मेंशन किया तो जस्ट वांटेड टू ऐड कि कैमोफ्लेज का मतलब इस तरीके से हुआ कि कोई प्रॉब्लम अगर हम उसको जड़ से बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते तो हम एटलीस्ट प्रॉब्लम को मास्क कर दें. तो मास्किंग का मतलब ये है कि अगर देखिए आइडियल ट्रीटमेंट तो पेशेंट के लिए नीचे का जबड़ा आगे लाना है अगर वो छोटा है तो. पर अगर पेशेंट ने नहीं ऐसा कराया है और अगर आगे भी कोई ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है और हम उसको नहीं ट्रीट कर सकते तो फिर हम मास्किंग करते हैं जिसमें हमें,
क्योंकि ऊपर के दांत बहुत बाहर लग रहे हैं तो हमें उसको जज करके ऊपर के दांत हटा के पीछे ले जाना पड़ता है। तो उस तरीके से इसको मास्किंग प्रोसेस मतलब कैमोफ्लेज ट्रीटमेंट ऑप्शन बोलते हैं। अगर पेशेंट सर्जरी के लिए नहीं मानता है तो मैंने पहले भी मेंशन किया कि अगर जरूरी है तो फिर उसको ब्रेसेस को सर्जरी के साथ ज्वाइन करना होता है। बट आज की डेट में हर पेशेंट हाँ नहीं बोलता सर्जरी के लिए अनलेस एंड अनटिल या तो चेहरे में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम उन्हें लगे या फिर बहुत ही ज्यादा फंक्शनल प्रॉब्लम है कि वो खाना ही नहीं चबा पा रहे या कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तब तक कोई सर्जरी के लिए तुरंत हाँ नहीं बोलता। तो इसलिए दूसरे तरीके यही पॉसिबल है कि फिर हमें कोई दांत निकाल के ट्रीटमेंट करना पड़ता है। वैसे भी दांत का निकालना काफी हद तक ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के साथ सिनोनिमस जाता ही है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा आगे हैं और बहुत ज्यादा गड़बड़ पोजीशन है तो उसमें दांत निकालना फर्स्ट प्रीमोलर एक्सट्रैक्शन सबसे कॉमनेस्ट मेथड है जिससे हम ट्रीटमेंट करते हैं। सर आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं राइट, और इस प्रोफेशन में तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आप ट्रीट करते हैं लोगों को, अलग अलग डिजीजेस, अलग अलग नई नई चीज़ें राइट। आपको क्या लगता है अभी भी क्या कॉमन मिथ हैं जो लोगों के दिमाग में हैं और जिनको आप बस वो बोल के और क्लियर आउट कर देते हो और लोगों को लगता है अच्छा ये इतने टाइम से मैं यही सोच रहा था या यही मेरे दिमाग में रखा हुआ था। तो व्हाट आर द बेसिक कॉमन मिथ्स एंड व्हाट आर द अनकॉमन मिथ्स जो कि लोगों को पता है या लोग समझ के बैठे हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, वो क्या है? जो सबसे पहला कॉमन मिथ जो मैं बोलूंगा वो मैं ब्रेसेस से रिलेटेड ही बोलूंगा। मोस्टली सब लोग ये सोचते हैं कि दांत निकालने से आंखों पे असर आता है। ओके बट ये नहीं है, इसका कोई कोरिलेशन नहीं है। जो नर्व सप्लाई ब्लड सप्लाई है वो सब सेपरेट है। हमारी आंखों का कोई कोरिलेशन नहीं है दांत के ब्लड सप्लाई या नर्व सप्लाई से। तो इसलिए दांत निकालने से कभी भी कोई आंखों पे असर नहीं पड़ता है। ये सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि हमें पेशेंट्स को कन्विंस करने में बहुत मुश्किल होती है अगर हम बोलते हैं कि हमें दांत निकालना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया में तो ये सबसे कॉमन है कि हर कोई यही कहता है कि फिर आंखें वीक हो जाएंगी, बट जबकि बच्चा ऑलरेडी चश्मा पहन के आया हुआ होता है। ओके वो तो ऐसी बात हो गई, बर्गर खाते हैं पूछे इसमें हेल्दी क्या है। सो इट इज जस्ट द सेम थिंग कि इस तरीके से मतलब सबसे कॉमन मिथ जो डेंटिस्ट्री में या ऑर्थोडोंटिक्स में हम फेस करते हैं वो है कि दांत का निकालना, और उसका कोई कोरिलेशन नहीं है आंख के वीक होने या मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम हटा सकते हैं दांत और ढंग से ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा ट्रीटमेंट कभी कभार दांत निकालना सजेस्ट करता भी है। जो और मिथ है डेंटल रिलेटेड वो है कि अलाइनर या ब्रेसेस एक एज में ही लग सकते हैं, यानी कि यंग हो तो ही लगा सकते हैं, एज हो जाती है लाइक 35-40 तो हम नहीं लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है, आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइक डीप बाइट होती है, स्ट्रेस रिलेटेड हमारा इनामल घिस जाता है, तो उसे हम पहले ऑर्थो से ब्रेसेस से ठीक करते हैं और फिर कैप्स लगाते हैं। ऐसे करने से हमें हो सकता है आरसीटी हम अवॉइड कर सके। अगर बिना ऑर्थो के हम करते हैं तो हमें दांतों में आरसीटी करके कैप्स लगानी पड़ती हैं, विच कैन बी अवॉइडेड। ओके और जो नॉर्मल जो मिथ हैं, ये बहुत कॉमन मिथ है कि हमारे पास आते हैं लोग बोलते हैं कि आप सफाई करेंगे तो हमारे दांत ढीले तो नहीं पड़ जाएंगे। ओके स्केलिंग इज क्या प्रोसेस होता है? क्लीनिंग ऑफ टीथ। ओके एंड हियर यू टू डिफरेंट वर्ड्स जो मैं सुने, व्हाट इज आरसीटी? आरसीटी इज रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसमें दांत को डेड किया जाता है। अच्छा, तो हम जब दांत को डेड कर सकते हैं तभी हम उसको रिड्यूस करके कैपिंग कर सकते हैं। तो दिस कैन बी अवॉइडेड अगर हम ढंग से ऑर्थो मतलब ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करा के और अपनी बाइट ठीक कराएं। ओके जस्ट टू एक्सप्लेन, जैसे दांत के 3 लेयर्स होते हैं। सबसे ऊपर जो है वो इनेमल होता है जो सबसे हार्डेस्ट होता है। उसके अंदर की तरफ डेंटिन होता है जो सेंसिटिव पार्ट होता है, जिससे सेंसेशंस ऊपर से नीचे की तरफ पास होते हैं। और सबसे अंदर की तरफ पल्प होता है। पल्प मतलब कि वहां पे ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई होगा। तो अगर कोई भी कैविटी या इन्फेक्शन जो है वो दांत के अंदर, कैविटी इज अ काइंड ऑफ इन्फेक्शन ओनली ऑफ द टूथ सरफेस, तो अगर वो पहले इनेमल तक ही है तो हम फिलिंग से उसको ठीक कर सकते हैं। थोड़ा और प्रोग्रेस करती है, डेंटिन की तरफ जाती है, तो भी हम थोड़ा बहुत उसको मतलब सब्सटीट्यूट्स से हेल्प करके रीग्रो कर सकते हैं। बट अगर इन्फेक्शन जो है वो डायरेक्टली पल्प तक पहुंच गया है तो फिर हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके ही उसको सेव किया जाना पॉसिबल है। उसके बिना वो पॉसिबल नहीं है। तो यू टोल्ड अस अबाउट इनेमल, ठीक है, वो फर्स्ट लेयर होती है जो टीथ पे।
यूजुअली ऐसा होता है क्या कि वो अब घिसने लग रही है, बिकॉज ये सब हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं कि वो घिस रही है क्या आजकल, किस चीज से घिस रही है वो? स्ट्रेस से। ओके, स्ट्रेस सबसे ज्यादा स्ट्रेस से हमारा इनामल लेयर जा रहा है, और गुस्से से। दो चीजें हैं जो हमारे दुश्मन है। मतलब हर कोई यही बोलता है ना कि स्ट्रेस मत लो। आजकल इतना हाई, अगर आप देखेंगे यंग लोगों में इतना डेथ रेट क्यों बढ़ गया है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो अगर हम मेडिटेट करें, योगा करें, तो हमारी ये स्ट्रेस लेवल डाउन जाएगा। अगर स्ट्रेस लेवल डाउन जाएगा तो हमारी जो दांतों की प्रॉब्लम्स है वो भी बहुत हद तक कम हो जाएगी। हाउ स्ट्रेस इज रिलेटेड टू दिस, लाइक इसका इसलिए है क्योंकि देखिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये समझनी है कि टीथ आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ इरप्शन। मतलब जब नेचुरली टीथ होते हैं ना, ऊपर और नीचे के दांत जो हैं वो वैसे थोड़े थोड़े इरप्ट होते ही हैं, बट इट इज बिकॉज ऑफ द नॉर्मल वेयर एंड टियर, क्योंकि वो ऊपर और नीचे के दांत थोड़े थोड़े घिस रहे हैं तो वो सेम लेवल पे ही रहते हैं। आप अगर देखोगे कि किसी का कोई एक दांत मिसिंग है तो ऊपर का दांत नीचे आ गया, ऐसा सजेस्ट करते हैं डेंटिस्ट या डॉक्टर कि भाई अब ये इसमें ये प्रॉब्लम हो गई। तो हमेशा टीथ जो है वो एक स्टेट ऑफ इरप्शन में रहते हैं, जिसके कारण वो एक सेम हाइट पे मेंटेन रहते हैं। अब आती है बात की हाउ इज स्ट्रेस अफेक्टिंग। तो जो ये है, ये हर चीज जो है वो माइंड रिलेटेड ही है। बिकॉज अगर हमारा माइंड अपने आप को कंट्रोल कर, हम अपने आप को सही ढंग से कंट्रोल कर सकें, विच शी सेड कि ये दैट इज पॉसिबल मोस्टली विद मेडिटेशन, योगा एंड अदर थिंग्स। तो हमारा जो बैक ऑफ द माइंड है सेमी कॉन्शियस या कॉन्शियस सिचुएशन में, तब हमारे दांत, आपने सुना होगा ब्रक्सिज्म इज लाइक कि ऊपर और नीचे के दांत जो है पेशेंट जो है वो घिसते हैं। उनके दांतों का घिसाव होता है क्योंकि उन्हें आदत हो जाती है। इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ क्योंकि जैसे शी सेड कि या तो गुस्सा आया और या फिर माइंड में स्ट्रेस चल रहा है बैक ऑफ द माइंड, तो हमें भी नहीं पता और हम बाद में बीच में बैठ के ऐसे दांत घिस रहे हैं। अच्छा, दैट्स ह्यूमन बिहेवियर, बेसिक ह्यूमन बिहेवियर। वो सोशल मतलब साइको सोशल पार्ट है इंसान का, जो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चलता ही रहेगा। यू मे नॉट रियलाइज। ब्रक्सिज्म जो है वो इंसान जब बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में होता है तो रात को दांत किटकिटाता है। सबकॉन्शियस माइंड की वजह से उसमें वो प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं और हम अपने दांतों को घिसना चालू कर देते हैं। अच्छा। और आप कभी गुस्सा करके देखेंगे तो आप सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या होता है? दांत घिस रहे होते हैं बिकॉज़ वी आर इन एंगर, क्लेंचिंग की। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे एनामल को घिसती है। ओके। एंड व्हाट इज डीप बाइट? डीप बाइट जो है वो इस तरीके से कि हमारे ऊपर और नीचे के दांत जिस तरीके से मिलने चाहिए उसमें एक नेचुरल एक मतलब डिफरेंस होना चाहिए। अगर ऊपर के दांत बहुत ही ज्यादा नीचे आ गए हैं तो उसे डीप बाइट बोलते हैं। ओवरलैप बहुत ज्यादा है, मोस्टली 2 mm का ओवरजेट, मतलब कि ऊपर के दांत 2 mm बाहर होने चाहिए और कम से कम 2 mm की ओवरबाइट भी होनी चाहिए। मतलब नीचे से आप सामने से देखेंगे तो नीचे के दांत कम से कम 2 से 3 mm विजिबल होने चाहिए। पर अगर मान लीजिए कि पेशेंट की डीप बाइट है, मतलब कि ऊपर के दांत बिल्कुल ही नीचे आ गए तो नीचे के दांत विजिबल ही नहीं होंगे, तो उसे डीप बाइट सिचुएशन बोलते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, नीचे के दांत जो है वो ऊपर के दांतों के पीछे हिट कर रहे होते हैं। डीप बाइट है। अच्छा, तो इसका तो आज ये आप लोग जाके चेक करिएगा, अगर आपके ऊपर के दांत नीचे के जिंजिवा पे टच कर रहे हैं बाइट करते वक्त, दैट मींस यू हैव अ डीप बाइट एंड यू नीड करेक्शन। और the upper teeth are hitting the back surface of the gum of the मतलब जो lower teeth हैं वो ऊपर के पीछे वाले एरिया पे हिट कर रहे हैं। तो इससे क्या कॉज होता है, मतलब क्या प्रॉब्लम होती है? है तो इससे बेटर है कि हमें इसको भी ठीक करना चाहिए। डीप बाइट में क्या होता है, जब कांस्टेंट एक आपका टच हो रहा है, ये दोनों दांत एक दूसरे से टच कर रहे हैं, तो ये आपके एनामल को फ्रैक्चर कर रहा है धीरे धीरे। अच्छा। और ऐसे ही पीछे के दांत करेंगे तो ये एनामल धीरे धीरे फ्रैक्चर हो रहा है, धीरे धीरे सेंसिटिविटी बढ़ेगी, सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो दांतों में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। सो ये सब तो मेरे साथ हो रहा है। ठीक है, आता हूँ। ओके, सो एज यू टोल्ड अस अबाउट स्ट्रेस, राइट? आजकल माइग्रेन की भी प्रॉब्लम है लोगों को, इस एरिया में पेन रहने लगता है, तो वो भी सेम फील्ड से है क्या? सो एज टोल्ड TMJ जो कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का शॉर्ट फॉर्म है। तो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो है वो ऊपर को नीचे से जोड़ता है। तो हमारा जबड़ा जब नीचे का खुलता है और बंद होता है तो उसके बीच में एक छोटी सी सॉफ्ट टिश्यू की डिस्क होती है, एज ले पर्सन समझाने के लिए। पर अगर मान लीजिए कि कभी कभार बिकॉज ऑफ दी स्ट्रेस एंड अदर थिंग्स, या कभी कभार कोई ऑर्गेनिक प्रॉब्लम ही है किसी को,
बाय बर्थ या कोई फॉर सम रीजन। तो उसमें क्या है, वो डिस्क जो है या तो उसकी पोजीशन सही नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि नीचे का जबड़ा जो है, नीचे का पार्ट जो है हड्डी का, वो ऊपर की हड्डी से हिट करेगा। तो कभी कभार आपने देखा होगा, किसी से सुना भी होगा कि मुंह खोलते या बंद करते वक्त किसी के क्लिकिंग साउंड, मतलब एक आवाज आती है। तो उस वक्त ये चीज जो है वो धीरे धीरे करके आपको प्रॉब्लम मतलब आगे जाके और बढ़ेगी। एक यंग एज तक बॉडी जो है वो रीजनरेट करती है। धीरे धीरे अगर वही चीज कंटिन्यू चलती ही रही तो उसके बाद जो है वो रीजनरेटिव कैपेबिलिटी कम हो जाती है। और फिर वो मतलब डीजनरेशन में या फिर दिक्कतों में जाने लग जाएगा। तो इसीलिए इस एरिया में पेन जो है वो कॉमन हो गया है। और ये प्रॉब्लम्स बाइट रिलेटेड, दांतों की पोजीशन रिलेटेड, कभी कभार ऑर्गेनिकली भी किसी को बाय बर्थ भी हो सकती है या अक्वायर्ड ओवर द टाइम भी हो सकती है कि प्रॉब्लम किसी को कोई ट्रॉमा हुआ, ये भी हो सकता है। तो ये सब चीजें ऐड करती हैं। सो इसमें एक चीज और है कि जो TMJ का पेन होता है वो हमारे किसी टूथ में भी रेफर हो सकता है। अच्छा। सो अगर हम डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं और हमारे यहाँ इस एरिया में पेन है और हम डेंटिस्ट के पास जाके एक्सरे कराते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो उसमें कोई ट्रीटमेंट मत कराइए। सबसे पहले अपना TMJ चेक कराइए। अच्छा। कि हो सकता है उसका रेफर्ड पेन हो, क्योंकि मैंने केसेस देखे हैं जहाँ रूट कैनाल हो गया, टूथ एक्सट्रैक्ट हो गया, तो भी वो पेन नहीं जाता, बिकॉज दैट वाज नॉट द रूट कॉज, दैट वाज द रेफर्ड पेन। तो अगर आपको दिख रहा है, आपका डेंटिस्ट कह रहा है कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है आपके दांत में, तो वहीं रुक जाइए और या तो ऑर्थोडोंटिस्ट को दिखाइए या TMJ स्पेशलिस्ट को दिखाइए। तो बिकॉज एवरीवन कैन नॉट डायग्नोज दैट प्रॉब्लम, तो एक दो ओपिनियंस लेना जरूरी होता है बिफोर गेटिंग एनी ट्रीटमेंट डन इन योर टूथ। दैट्स माय सजेशन। ये बचपन से आती रहती है आवाज, खाना खाते हैं तब भी आती है आवाज। बट अगर पेन नहीं है, हाँ पेन नहीं है, तो बट वो एक पॉइंट तक होगा, बिकॉज अभी आप ऑब्वियसली इन द यंग कैटेगरी आते हो, विद टाइम वो दिक्कत बढ़ सकती है। So that's what, आपको भी 6 महीने में चेकअप कराने की जरूरत है। कभी गया ही नहीं मैं आज तक तो। ओके। सो ऑर्थोडोंटिक्स में अगर मैं बात करूं तो पिछले 10 सालों में कितनी एडवांसमेंट आई है, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो मेथड्स में हो, कोई नई चीज़ें हैं, और आपको क्या लगता है आगे आने वाले 10 सालों में और क्या नई चीज़ें आ जाएंगी? क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ट्रीटमेंट्स हैं जो कि होने चाहिए, डिजीज़ बढ़ती जा रही हैं। तो एडवांसमेंट की अगर बात करें तो पहले क्या थी और आगे क्या हो सकती है? देखिए, अगर हम पहले से बात करें तो ट्रेडिशनल ब्रेसेस ही सबसे मेन स्टे होता था। और आज आप अगर किसी से भी बचपने में पूछेंगे तो वो मेटल ब्रैकेट्स लगते थे, मतलब ऐसे बस वो हंसते थे तो सब सिर्फ मेटल ही दिखता था। मेटल ही। आज की डेट में अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी उन नॉर्मल ट्रेडिशनल ब्रेसेस की बजाय बेटर मतलब ब्रैकेट्स हैं जो दांत के कलर को मैच करते हुए सिरेमिक ब्रैकेट्स हैं, वो आ गए हैं। उसके अलावा कुछ ब्रैकेट्स हैं, सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट्स बोलते हैं। उनसे हम थोड़ा सा और बेटर मतलब और फास्टर रिजल्ट ला सकते हैं। थोड़ा सा कंपैरेटिवली वो कंफर्टेबल होता है पेशेंट के लिए, एंड मतलब उससे रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। अगर टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन बात करें तो आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हर जगह मतलब हर धूम मचा रखी है। In this field also? हाँ, in this field also artificial intelligence works because of the advent of aligners. क्योंकि हम जो भी ट्रीटमेंट प्लान करते हैं वो उनका जो बैक डेटा होता है उसके बेसिस पे ही प्लानिंग होती है, उसी के बेसिस पे ही ट्रीटमेंट प्लान बनता है। और फिर पेशेंट्स को वही चीज, जैसे अलाइनर्स हैं उस दैट इज मतलब हम ट्रेडिशनल ब्रेसेस से अलाइनर दैट इज अ प्लास्टिक काइंड ऑफ अ ट्रे जो पेशेंट के लिए कस्टमाइज्ड बनाई जाती है। हमें एक स्कैन करना होता है, दैट इज अगेन एन मतलब इनोवेटिव एंड न्यू टेक्नोलॉजी विच हैज कम, जो कि पहले हम सिर्फ और सिर्फ इम्प्रेशंस लेते थे, मिक्स किया था। मतलब कई बार अगर कोई भी डेंटिस्ट के पास जाता था तो हम ये भी पूछते थे कि भाई कौन सा फ्लेवर फील हुआ, तो वो मिक्स करके करते थे। आज की डेट में चेंज ये है कि वही चीज हम डिजिटली
अक्वायर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्कैनर। ओके जब वो बन जाता है उसके बाद हम पेशेंट्स को हाथों हाथ ये भी दिखा सकते हैं कि ट्रीटमेंट अगर हम जो भी प्लान कर रहे हैं ये प्री है, मतलब ये पहले का सिचुएशन है, और साथ ही हम हाथों हाथ ये भी दिखा सकते हैं कि ये रिजल्ट आ सकता है। अगर मान लो कि हमें कोई दांत निकालना है तो टेक्नोलॉजी जो कि AI बेस्ड ही है वो इतनी एडवांस्ड है कि हम उसमें ये दिखाएंगे कि ये दांत हट जाए तो पेशेंट ये भी देख सकता है कि अगर दांत हटा दिया तो दांतों की पोजीशन ऐसी हो जाएगी। ओके इवन टेक्नोलॉजी वाइज ये भी देख सकते हैं, कुछ कुछ एप्स ऐसे आते हैं जिसमें पेशेंट्स अगर खुद स्माइल करेंगे तो वो ये दिखाएगा कि हमें हमारी स्माइल कैसी दिखेगी अगर हम कोई भी ट्रीटमेंट कराते हैं, इधर विद ब्रेसेस और इधर विद अलाइनर्स, बट वो क्या चेंज आएगा प्री और पोस्ट वो हाथों हाथ दिखा सकता है इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ओके जो भी फेशियल एक्सप्रेशन है आप वो लाइफ टाइम देख सकते हैं कि ये हो जाएगा। सेल्फी लेनी होती है और वो सेल्फी को एज सेल्फी ही कन्वर्ट करके दिखाएगा दांतों की पोजीशन को इम्प्रूव करके कि ये ऐसा पॉसिबल है आफ्टर ब्रेसेस। एंड हाउ मच डू यू थिंक इट इज एक्यूरेट? काफी हद तक एक्यूरेट है। अगर देखिए उसमें एक एल्गोरिथम के हिसाब से चलता है, बट अपन 90% मान सकते हैं कि वो काफी हद तक वैसा रिजल्ट आ सकता है अगर हम ढंग से ट्रीटमेंट प्लान करें तो। Okay. I guess that's the same software you were showing and scanner जो मैंने दिखाया scanner था. Yes. Okay. In FP. Yes. तो any success story of any braces और implants की हम बात करेंगे, ठीक है? implants क्या होते हैं, कैसे होते हैं? Let's start with that only कि implants के बारे में एक तो बहुत ज़्यादा myths हैं, right? तो implants एक तो होते क्या हैं, ठीक है? और किस एज में हम उनको लगा सकते हैं? सी इम्प्लांट्स क्या होता है, जैसे आजकल यंग लोगों के भी दांत निकल रहे हैं, हाँ. है ना, तो जब हम सिंगल टूथ कोई निकल जाता है और हमें रिप्लेस करना होता है, सो इट्स अ टाइटेनियम बेस्ड स्क्रू बोल देते हैं जिसे, जो कि बोन के अंदर जाता है, जो कि रूट का काम करता है उस टूथ के लिए। उसके ऊपर एक अबटमेंट लगता है जिसके ऊपर क्राउन फिक्स हो जाता है, तो वो एक फिक्स्ड रिप्लेसमेंट हो गया मिसिंग टूथ के लिए। तो बिकॉज इट्स फिक्स्ड तो ये अच्छे से च्यू करने में हेल्प करता है। एंड मोस्टली अब आप भी जानते हैं कि दांत कौन सी एज में जाता है। मोस्टली 50+ 60+ लोगों के दांत नहीं होते, एंड न्यूट्रिशन भी उसी एज में ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो मोस्टली फुल माउथ इम्प्लांट्स जो होते हैं, मतलब कि 6 इम्प्लांट नीचे लगते हैं, 6 इम्प्लांट ऊपर लगते हैं, और वो डेंचर फिक्स हो जाता है उस पे। तो इंसान अच्छे से बोल पाता है, उसका कॉन्फिडेंस रिटर्न हो जाता है, वो च्यू अच्छे से कर पाता है। तो दैट हेल्प्स, मतलब वो उस एज में लोगों को बहुत हेल्प करता है। पेन नहीं होता क्या? पेनफुल नहीं होता क्या? सी इट्स ऑल डन अंडर एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया होता है, जनरल एनेस्थीसिया यूज ही नहीं होता है डेंटल में, मोस्टली नहीं यूज होता है। छोटे बच्चों में यूज करना पड़ता है कभी कभार, जब उनके कैविटीज एक लिमिट से बाहर हो जाते हैं तो उनमें यूज करते हैं। अदरवाइज मोस्टली डेंटल प्रोसीजर्स आर डन अंडर लोकल एनेस्थीसिया, और उसके बाद फिर वो मेडिकेशन पे रहते हैं। सो दांतों में ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं है जो कि बहुत पेनफुल हो, कि जो एंजाइटी है, जो पहले ट्रीटमेंट होते थे और जो आज जो वही है, टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो गई है कि वो पेन आजकल इतना फील नहीं होता जो पहले होता था। पेनलेस टेक्निक्स भी बहुत सारी पेनलेस टेक्निक्स है। इंजेक्शंस जो हम देते हैं उसमें भी बहुत सारे एडवांसेस आए हैं जो काफी हद तक जो लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। हम लोकल एनेस्थीसिया तो एक टर्म है, अलग अलग वो भी अलग अलग कंपनीज और अलग अलग चीजों को दिया जा सकता है। आर्टिकेन, लिग्नोकेन। तो आर्टिकेन एक स्ट्रॉन्ग एनेस्थेटिक है जो काफी हद तक एनेस्थेटाइज कर देता है उस एरिया को, जिससे हमें दिक्कत नहीं आती, कोई पेन फील नहीं होता। It's a very good anesthetic to be used for local anesthesia procedure. That is used only by dental surgeons. Yeah. Okay. और इनके जो इम्प्लांट्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एज क्या हो सकती है? क्या इम्प्लांट्स बच्चों को भी लग सकते हैं, या सिर्फ बूढ़ों को लग सकते हैं, या सिर्फ यंग एज में ही इम्प्लांट लगाने चाहिए ताकि हमारे जब मसूड़े मजबूत हों तभी वो इतना फोर्स और चीजें ले सकते हैं? सो इम्प्लांट्स आफ्टर द एज ऑफ 18 लग सकते हैं, उससे पहले इम्प्लांट्स नहीं लगाने चाहिए, बिकॉज जॉ ग्रोथ हो रही होती है। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड कि 18 साल क्यों बोला जाता है। तो हमें नहीं पता होता, हो सकता है किसी में ग्रोथ पोटेंशियल रह गया हो और वो हो रहा हो, इसलिए मोस्टली एडल्ट हम बोलते हैं 18 ईयर्स में एडल्ट हो गया, अब आप इम्प्लांट लगा दो। एंड इसके बाद कोई स्पेसिफिक एज नहीं होती है,
अब कभी कभार बच्चों का एक्सीडेंट हो जाता है, गिर जाते हैं, आगे का दांत निकल जाता है, तो उसमें आप इम्प्लांट कर सकते हो। सिंगल मिसिंग टूथ पे आप इम्प्लांट कर सकते हो। तो इम्प्लांट आफ्टर द एज ऑफ 18 आप किसी को भी लगा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द बोन कंडीशन। As I said कि teeth are always in the state of eruption, तो ऊपर के दांत और नीचे के दांत हमेशा उगते ही रहेंगे, बट 18 तक वो पॉसिबल है ग्रोथ। बट इम्प्लांट जो है वो हमने हड्डी में एक बार फिक्स कर दिया तो वो नेचुरल टेंडेंसी ऑफ टूथ इरप्शन नहीं शो कर सकता। अच्छा, तो टिल द अडल्टहुड हम अक्लूजन जो है वो डायनेमिक मानते हैं कि थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है। एक अडल्टहुड रीच करने के बाद हम मानते हैं कि ऑलमोस्ट एक फाइनल पोजीशन आ गई है। इसलिए ये चीज हमेशा रिकमेंडेड रहती है कि 18 साल मतलब अडल्ट हो जाए उसके बाद ही ये करें। अगर कोई नीड है, किसी का दांत मिसिंग है, तो हमें कोई ना कोई दूसरे तरीके से उस स्पेस को मेंटेन रखना चाहिए और जब वो अडल्ट हो जाए उसके बाद ही ये प्रोसीजर प्लान करना चाहिए। उसके बाद किसी भी एज में हो सकता है किसी का कोई एक दांत मिसिंग है, किसी ने नहीं ध्यान रखा और दांत बहुत ही खराब हो गया, तो इसमें एडवांटेज ये होता है कि हमें अगल बगल के दांत में कोई भी प्रोसीजर नहीं करना पड़ता कंपेयर टू ट्रेडिशनल ब्रिज जो कि पहले से चलता आ रहा है, जिसमें हमें 2 दांतों का सपोर्ट लेके एक दांत को रिप्लेस करना होता है। तो उसमें अगल बगल वाले दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट एज वी एक्सप्लेन वैसा करना पड़ता है और उसके बाद उस दांत को घिसना भी पड़ता है और फिर उनपे कैप लगती है। तो एक दांत रिप्लेस करने के लिए हमें अगल बगल के 2 दांत को भी घिसना पड़ा और उसके बाद उस पे 3 कैप भी लगी, जिसको रिप्लेस किया वो भी और अगल बगल के दांत से सपोर्ट भी लिया, तो टोटल 3 कैप्स। तो मतलब उसके कंपैरिजन में इम्प्लांट एक बेटर प्रोसीजर है क्योंकि हम अगल बगल के दांत को भी नहीं डैमेज कर रहे हैं। और वो मतलब ऐसे बोलते हैं कि जैसे हार्ट में पेसमेकर लगता है ना, उस तरीके से एक एनालॉजी है कि भाई दांत में मोस्ट क्लोजेस्ट रिप्लेसमेंट जो है वो इम्प्लांट। इम्प्लांट्स कितने तरीके के होते हैं? मतलब हमने बहुत सुना है कि पीपल यूजुअली पुराने टाइम के लोग सोने का भी लगवा लेते थे, चांदी का भी होता था। तो अगर ये होते हैं क्या ये सेफ होते हैं, और या फिर इनमें भी ऐसा होता है कि जो इन्फेक्शन का रेट है वो ज्यादा होता है या कम होता है? व्हाट्स ऑल? जो सोने का और चांदी का बोलते थे वो कैप्स होती थी। ओके। वो इम्प्लांट्स नहीं होते। इम्प्लांट्स टाइटेनियम के होते हैं। ओके। ठीक है, वो बायोकम्पैटिबल मटेरियल के होते हैं क्योंकि वो हमारी हड्डी में जा रहे हैं। तो कोई भी चीज जो हड्डी के अंदर जा रही है वो बायोकम्पैटिबल होती है, मतलब वो हमारी मतलब जो हमारी बॉडी है उससे कंपैटिबल होनी चाहिए। एक्सेप्ट करेगी उसे। एक्सेप्ट करना जरूरी है, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो टाइटेनियम को एक्सेप्ट करती है हमारी बॉडी। एग्जैक्टली। ओके। टाइटेनियम और अलॉयज होते हैं उसमें। टाइटेनियम अलॉय होता है। ओके। तो वो उसका बना हुआ होता है, तो वो 100% सेफ होता है। वो स्टेरलाइज्ड एनवायरनमेंट में ही रहता है और ये बाहर की कंपनीज बना रही हैं, तो वो पैकिंग ऐसे होती है कि वो इतना स्टेरलाइज होता है, जब हम सर्जरी करते हैं तब भी वो एकदम स्टेरलाइज एनवायरनमेंट, ओटी जैसा वो रहता है रूम, तो इसलिए काफी सेफ रहता है वो। मतलब काफी लोगों को ये लगता है कि हम एक मेटल अपनी बॉडी के अंदर कैसे ले लें, तो ये बहुत बड़ा मिथ है। तो उसी चीज को क्लैरिटी देता है कि बायोकम्पैटिबल होता है, तो इट्स वेरी सेफ फॉर योर बॉडी। कोई एक ऐसी सक्सेस स्टोरी आपकी, कोई ब्रेसेस की या फिर इम्प्लांट की, जो आपने लगाया, वो प्रोसीजर किया और उसके बाद क्लाइंट वाज लाइक वेरी हैप्पी? ब्रेसेस में मोस्टली बस ये रहता है कि एवरी पेशेंट वुड डेफिनेटली बी हैप्पी एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट इफ डन नाइसली। मोस्टली पेशेंट्स काफी हद तक अप्रिशिएट करते हैं स्माइल को। ओनली थिंग इज द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट इज स्लाइटली लॉन्गर, सो वो थोड़ा सा दिक्कत आती है माइंड में कि भाई 1.5 साल बोला था तो 1.5 साल से 1-2 महीने ज्यादा हो गए। तो समटाइम्स एट द एंड थोड़ा सा बस ऐसे होता है कि बस अब हटा दो, बिकॉज दे नो कि स्माइल इम्प्रूव हो गई है। So many patients have successfully मतलब suggested कि उनका confidence level में बहुत फायदा हुआ। Especially mentioning during my PG days, I had treated one of a cleft case, जो कि एक special case होता है जिनके अंदर palate में एक मतलब छेद जैसा होता है कि एक special category of case होता है, cleft lip, cleft palate. And that boy, when I treated him and finished his treatment, so I was studying in Karnataka, as I mentioned. And he did not know English or I did not know Kannada that fluently, and written to bilkul bhi nahi, but I still have a hand note of him that how he felt, because I could not correlate, but I asked the sisters to translate and they said he has written very good about the treatment and he is very happy and he is thanking. So that was something at that moment that I could feel कि हाँ
अच्छा है, दिस इज द थिंग विच आई वांटेड, कि इस तरीके से पेशेंट रिवर्ट बैक करे तो यू फील गुड। For you? सो मेरे केस में जो थोड़े से एजेड पेशेंट हो जाते हैं, एक पेशेंट थे जिनके काफी सारे मिसिंग टूथ थे, वही डीप बाइट प्रॉब्लम था, दांत खिस गए थे, सब चले गए थे। सो ही केम टू मी कि मैम मैं खा तो लूंगा। सो आई स्टार्टेड हिज ट्रीटमेंट। इम्प्लांट्स की ट्रीटमेंट में भी टाइम लगता है, बिकॉज इम्प्लांट प्लेसमेंट के 2.5 months बाद कैप लगती है, तो वो रिजल्ट आने में 3 महीने लगते हैं। तो ही वॉज अ रियली मतलब पेशेंस था उस पेशेंट में कि उसने वो ट्रीटमेंट कराया, एंड नाउ ही इज रियली हैप्पी विद हिज टूथ। मतलब वो अच्छे से सबसे बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है एक एज में वो होती है खाने की अगर वो ढंग से खा पी ले तो उनको और कुछ चाहिए ही नहीं। सो वो अच्छे से खा पी पाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ही मतलब वो जब वो थैंक यू बोलते हैं हमें कि थैंक यू, आपकी वजह से हम खा पा रहे हैं, तो दैट इज द मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग यू कैन हैव। नाइस। और अभी तक ऐसी कितनी सक्सेस स्टोरीज बिल्ड हो चुकी हैं? काफी सारी। इट्स बीन 14+ years. तो yes, I was in a charitable hospital for 8 long years. Okay. तो वहाँ पे द थिंग वाज कि पेशेंट इतना पेइंग नहीं होता था, बट स्टिल आपको पैशन होता है लोगों को ट्रीट करने का, तो वही पैशन मेरे अंदर था। तो मैंने वहाँ इतने पेशेंट्स को ट्रीट किया, एंड द ब्लेसिंग्स दे गिव यू इज इनवैल्यूएबल। तो मतलब उसका तो लिमिट ही नहीं है, वो तो काफी सारे पेशेंट्स हैं। एक ये मिथ है या फिर ये एक इसको किस तरीके से देखा जा सकता है कि जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वो इसमें बहुत हाई होती है, ऐसा हम यूजुअली लोग मानते हैं। तो क्या ये चीज़ सच है कि जब भी आप कोई डेंटल इम्प्लांट हुआ या फिर ब्रेसेस हुए या ऐसी कोई भी चीज़ अपने दांतों में या फिर इवन चेकअप्स हुए, तो वो क्या कॉस्ट करते हैं? और क्या अगर आपके दांतों में कुछ मेजर इशू है तो उसमें लाखों तक का खर्चा लग सकता है? सो डेंटल इम्प्लांट्स हमें कब जरूरत पड़ती है? जब हमारा टूथ कोई मिस हो गया। तो मिस क्यों हुआ? क्योंकि हमने डेंटल चेकअप नहीं कराया। तो चालू कहाँ से हुआ? वो 200 रुपए की कंसल्टेशन से। अगर आप वो 200 रुपए की कंसल्टेशन करवा लेते, आपकी कैविटी डिटेक्ट हो जाती, तो हो सकता है 500,000 रुपीज में आपका ट्रीटमेंट हो जाता। चलो ठीक है, हमने वहां इग्नोर किया। उसके बाद आया पेन, वो कैविटी इंक्रीज हुई, पेन हुआ, हमने क्या किया? मेडिकल की शॉप पे गए, पेन किलर खाया, उस पेन को सप्रेस किया, वो इन्फेक्शन और बढ़ता गया अंदर। अब वो इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते स्वेलिंग आ गई, तो हमने एंटीबायोटिक कोर्स खा लिया। तो क्या हुआ? हमें जो सिंपल वे था एक डेंटिस्ट के बाद जाके चेकअप कराना, उसकी जगह हमने दवाइयां खा खा के इन्फेक्शन को सप्रेस किया और अपना टूथ लॉस किया। तो सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज हो गया। अब अगर वहां पे हमने टूथ नहीं लगवाया तो हमारे दूसरे साइड के टूथ भी चले जाएंगे। ओके। सो डेंटिस्ट्री इज नॉट एक्सपेंसिव, इग्नोरेंस इज। ओके। है ना? एंड इम्प्लांट्स अगर आप लगवाएंगे तो आप फूड को अच्छे से च्यू कर पाएंगे, न्यूट्रिशन जाएगा, तो आप वीक नहीं होंगे। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आप दवाइयां खाएंगे। तो चूज आपको करना है कि आपको खाना क्या है, कि दवाइयों से या खाने से। तो इट्स मतलब आप चूज नहीं कर सकते व्हाट इज कॉस्टली। तो दैट इज द बेस्ट आंसर आई कैन गिव यू अबाउट द कॉस्ट। ओके। सो अबाउट डेंटल ब्रेसेस अगेन, एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है ये। एज आई मेंशन कि 2 साल के आसपास या 1.5 साल के आसपास मिनिमम ट्रीटमेंट टाइम होता है। तो अगर जैसे नॉर्मल ब्रेसेस का अगर हम कॉस्ट भी अगर लेके चलें तो पर अपॉइंटमेंट कॉस्ट भी बहुत मिनिमम होता है। अगर आप 2 साल को कंटिन्यू करते हुए देखेंगे तो इंक्लूडिंग द कॉस्ट, इंक्लूडिंग मतलब स्टरलाइजेशन, इंक्लूडिंग द मटेरियल्स, इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी अपॉइंटमेंट, जो हर चीज ढंग से है। उसके साथ साथ कभी कभार ब्रेसेस में इमरजेंसीज भी होती हैं, जिसमें पेशेंट कभी कभार मतलब छोटी इमरजेंसीज की कोई अटैचमेंट हट गया और वायर पोक कर रहा है, तो obviously we will attend that also. So there are a lot of things and patient would be constantly attached to you for 2 years, जिसमें आप उनका ध्यान भी रखेंगे। So that much amount, and definitely एक अच्छा ट्रीटमेंट करने के लिए सारी चीजों को कवर करते हुए बेसिक अमाउंट्स तो डेफिनेटली नीडेड है। दैट्स व्हाई वो सम अमाउंट जो मतलब टोटल अमाउंट बोला जाता है वो बड़ा तो लगता है, बट इफ यू एक्चुअली डिवाइड इट इन फॉर मतलब 2 years, so that would not amount to 500 or 1,000 rupees in appointment also. Okay. मतलब कि ये कि अगर हम इतना ज़्यादा इग्नोर ना करें
अपने दांतों के दर्द को और इन सब चीज़ों को, तो इन द बिगिनिंग ऑल्सो कि ये बड़े आराम से कवर अप हो सकता है, सारी आराम से चीजें हो कवर हो सकता है, जाएंगी, आराम से। बट उसको हम थोड़ा सा डिले करते जाएंगे, जैसे See, मम्मी ये पापा की होता है आदत ना, होती है। जब तक दर्द नहीं होता हाँ, तब तक डेंटिस्ट के पास इंडिया नहीं में जाते जाता हैं। ही नहीं है कोई जब तक दर्द नहीं होता, तो मतलब चेकअप कराने का तो बात ही दूर की बात है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है दांतों में, जब गम डिजीज होता है ना, पेन ही नहीं होता। आप कितने अच्छा। पेशेंट्स को देखेंगे, कहेंगे कि ये दांत हमारे हाथ में आ गया, हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि ओके, ये साइलेंट डिजीज होता है। गम्स की जो डिजीज होती है वो साइलेंट डिजीज होती है। अच्छा, तो वो तो बता भी डेंटिस्ट ही सकते हैं कि वो आपको बता गम डिसीज है। एग्जैक्टली, इसीलिए यही दैट्स व्हाई सजेस्टेड होता है कि कम से कम 6 मंथली या ईयरली एटलीस्ट, चलो 6 महीने में भी नहीं तो 1 साल में एक बार तो डेंटिस्ट से आप कंसल्ट कर लो। इट विल सेव लॉट ऑफ मनी फॉर यू। और जिस तरीके से देखा जाए टबैको बिकता है इंडिया में, राइट, पहले तो ये बताओ कि टबैको की वजह से आपके पास कितने केसेस आते हैं ऑलमोस्ट एवरी डे, कि दांत खराब हो गए या झड़ रहे हैं, गिरने वाले हैं, दर्द हो रहा है उनमें उनकी वजह से, और यूजुअली लोग फिलिंग करा लेते हैं किसी तरीके की, क्या होता है वो क्या प्रोसेस होता है? सी, टबैको तो एक वाइडर टर्म बोला है आपने। हाँ। आपने देखा होगा मंजन भी होते हैं, लाल मंजन होते हैं, जिससे हाँ। लोग रोज सुबह अपने दांत साफ करते हैं। हाँ, तो वो बहुत हार्मफुल होता है आपके दांत के लिए, क्योंकि वो आपकी एनामल लेयर को डैमेज कर रहा है। अच्छा, एनामल लेयर इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन योर बॉडी। ओके, तो अगर वो उसको गला रहा है तो वो कितना हार्मफुल होगा आपके लिए। तो वो आपकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर रहा है, प्लस वो आपके पेन को मास्क कर देता है। उसमें पेन नहीं होता। उसमें पेन नहीं होता। अगर आप टबैको खाना छोड़ देंगे तो आपको पेन होने लग जाएगा। ओके, तो उसमें वो मास्किंग की कैपेसिटी होती है। लेकिन जब तक आपको ये रियलाइज होता है आपके दांत एकदम झड़ चुके होते हैं, तो इसलिए और टोबैको के साथ ऑब्वियसली उसके साइड इफेक्ट्स तो है ही, जो दूसरे पैकेट पे लिखा हुआ होता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस, टोबैको इज इंजूरियस, बट हर कोई खाता है। तो मतलब ऐसा नहीं होता कि हम धीरे धीरे छोड़ देंगे या परसों से चालू करेंगे। इट्स इधर हाँ या ना। अगर आपको टोबैको छोड़ना है तो आप अभी की अभी छोड़िए, वरना आप जिंदगी भर नहीं छोड़ सकते। और आप मतलब बेसिकली आप च्यू ही नहीं कर पाएंगे खाना, आप सिर्फ टोबैको खा रहे हैं। आपकी फैमिली को देखिए, आपकी पीछे कितने लोग हैं, उस हिसाब से आप डिसाइड करिए कि यू शुड कंटिन्यू ईटिंग टोबैको या उसको क्विट करना है, बिकॉज इट्स डेफिनेटली नॉट गुड फॉर योर टीथ एज वेल एज योर हेल्थ। जो लोग खाते हैं टोबैको, यूजुअली हमने देखा है उनको, चाहे वो कोई भी, चाहे ऑटो वाला हो, चाहे घर परिवार में अंकल हो, कोई भी, उनके नीचे जो और ऊपर की साइड वो रेड हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं बहुत ज्यादा। और क्या अगर वो वाइट हो सकते हैं क्या वापस? हम सजेस्ट करते हैं, अगर आप टोबैको ईटिंग क्विट कर रहे हैं तो आप उसको साफ कराइए। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हम कंटिन्यू ही रखना है तो उसको साफ कराने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज इट विल अगेन टेक दी कलर, है ना। ऑलरेडी आप अपने दांतों को तो इनामल लेयर जा ही रही है, फिर आप उसको क्लीन कराएंगे तो क्लीनिंग होती है जो आपके डिपॉजिट्स होते हैं उनको क्लीन करने के लिए। लेकिन जब आप स्टेन्स को क्लीन करवाते हैं दांतों को रगड़वा के, तो डेफिनेटली देयर इज लॉस ऑफ इनामल। बहुत मिनिमल होता है लेकिन लॉस होता है, तो एक बार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको रिपीटेड प्रोसेस में कराएंगे तो डेफिनेटली आपको सेंसिटिविटी होगी, काफी सारे इश्यूज हो जाएंगे। तो अगर टोबैको च्यूइंग हैबिट है और उसको क्विट करना है तो पहले दांत साफ करा लो और उसका टोबैको खाना बंद कर दो। दैट इज द बेस्ट वे यू कैन डू दैट। आई गेस इट्स द हार्डेस्ट वे फॉर ऑल द टोबैको chewers, राइट। ठीक है, ये तो हुई मान सकते हैं मिडिल क्लास लोगों की बात। अच्छा, अगर मैं बोलूं सेलिब्रिटीज क्या करते हैं अपनी दांतों को अच्छे से ट्रीट करने के लिए, बिकॉज दे आर ऑल इन मूवीज, ठीक है, और आई गेस वो बहुत सारा वाइटनर्स और बहुत सारी ऐसी आर्टिफिशियल चीजें भी यूज करते हैं जो कि ऑन कैमरा आप नहीं पकड़ सकते और वो अच्छी दिखती है, राइट। वो क्या चीजें होती हैं और क्या वो चीजें बहुत ज्यादा महंगी होती है? हाँ, वो ट्रीटमेंट्स डेफिनेटली थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। मतलब कुछ कुछ अलग अलग तरीके के प्रोसीजर्स हैं। हम कुछ कुछ शेड्स दांत के थोड़ा सा ब्लीच कर सकते हैं, जैसे हेयर ब्लीचिंग होती है, तो उसी तरीके से दांतों की सरफेस को थोड़ा सा ब्लीच करा जा सकता है, जिससे जो डार्क शेड है वो 1 या 2 टोन कम हो सकता है। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बिल्कुल वो जो यूएस वाइट जैसे सब इमेजिन करते हैं कि बिल्कुल वो शाइनिंग स्पार्कलिंग स्माइल हो, क्योंकि हमारे दांत का इनेमल का कलर भी कैसा है वो भी इम्पोर्टेंट है।
तो अगर जेनेटिक्स में वो डेफिनेटली वाइट वैसा नहीं है तो वो नहीं हो सकता। दूसरा प्रोसीजर जैसे आपने कहा कि सेलिब्रिटीज, तो आपने देखा होगा मोस्टली बहुत ही अल्टीमेट स्माइल है। इवन अभी कुछ दिनों से वो मतलब कुछ पोस्ट्स भी वायरल हो रहे हैं कि अभी ये राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी की शादी हुई थी, तो राधिका मर्चेंट की स्माइल में कितना फर्क है। तो शी हैज अंडरगॉन विनेयर ट्रीटमेंट। तो विनेयरिंग जो है वो 2 तरीके की होती है, जिसमें या तो कंपोजिट मटेरियल यूज हो सकता है या फिर थोड़ा और बेटर रिडक्शन करके सिरेमिक मटेरियल जिसपे कम स्टेन्स होंगे, बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। जैसे कैप होती है ना, कैप पूरे दांत को कवर करती है, ये एक ओनली सुपरफिशियल सरफेस को आगे वाली उसको एक शेल की तरीके से सिर्फ ऊपर को कवर करेगी। तो आपके आगे का सरफेस जो विजिबल पार्ट है वो वैसा ही हो जाएगा जैसा आप इमेजिन करते हैं। तो इस कारण से मतलब सेलिब्रिटीज जो है वो इन ट्रीटमेंट्स को करते हैं। और इवन आजकल कॉमन पीपल भी मतलब शादी से पहले हर कोई चाहता है कि बिल्कुल ही चेंज हो जाए स्माइल, तो उसके लिए पूछते हैं या करवाते हैं डिपेंडिंग ऑन। So that's a thin layer of kind of whiteness. Laminates होता है जैसे एक तरीके का लैमिनेट हो गया, जैसे हम फर्नीचर पे अलग अलग कलर की माइका लगाते हैं, तो इट इज लाइक दैट काइंड ऑफ अ लैमिनेट थिंग जो टूथ के सरफेस पे लगती है। हार्मफुल होता है क्या? टूथ रिडक्शन तो होता ही है उसमें, थोड़ा सा टूथ जो है उसको घिस के ही उसी को ही अकोमोडेट करेंगे ना। आज अगर हमें उसी सरफेस के अंदर लगाना है तो उसमें थोड़ा टूथ रिडक्शन तो होगा ही। बट डेफिनेटली किन्हीं पेशेंट्स में जिनके दांतों के अंदर बहुत ज्यादा स्पॉट्स, आपने देखा होगा कि फ्लोरोसिस के या कुछ एरियाज स्पॉट्स के होते हैं, हाइपोप्लेजिया के, तो उनके अंदर दांत बिल्कुल ही अलग से कलर के दिखते हैं, चकते लगते हैं दांतों पे। वो बहुत अच्छा रिजल्ट उनके कंपैरिजन में दे सकता है। ओके अभी आपने जैसे वो बताया मंजन, हम बहुत फैमिलीज में अभी भी ऐसा यूज करते हैं, और एमपी यूपी साइड तो मुझे भी पता है ऐसा बहुत यूज होता है। आपके हिसाब से व्हाट्स द बेस्ट टूथपेस्ट राइट नाउ इन द कंट्री? मेरे हिसाब से जो नॉर्मल टूथपेस्ट होता है वो यूज करना चाहिए। आई वुड नॉट सजेस्ट एनी आयुर्वेदिक पेस्ट ऑल्सो, या जो बहुत जिसमें लौंग का तेल हो या ऐसी कोई टूथपेस्ट, बिकॉज हमें नहीं पता होता इनमें जो अब्रेसिव कंटेंट होता है। मतलब ये जो टूथपेस्ट है ये एक पाउडर को बहुत सारी चीजों से मिला के बनता है। तो जब हमारा जो पार्टिकल साइज है वो बढ़ जाता है तो वो हमारी इनामिल लेयर को डैमेज करता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे, बोलते हैं नमक का तेल, वो सरसों का तेल है, नमक मिला के दांतों को घिसो, तो वो जो नमक है वो भी आपके दांतों को घिस देगा। तो वो अगर आप मसूड़ों पे यूज करोगे तो वो आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर जहां आपने उसको दांतों पे यूज किया वो आपके एनामल लेयर को डैमेज करेगा। तो जो सबसे सिंपल पेस्ट होती है, जैसे क्लोजअप कर लिया, कोलगेट कर लिया, द सिंपलेस्ट पेस्ट वो यूज करिए। कोई सेंसिटिविटी टूथपेस्ट यूज नहीं करना है, कोई लौंग का तेल यूज नहीं करना है, कुछ भी यूज नहीं करना है, बिकॉज ये सब चीजें आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है टूथ में तो वो उसको मास्क कर देगी। ओके तो जो सेंसिटिविटी वाले जितने टूथपेस्ट आते हैं वो मास्क करते हैं हमारे पेन को? वो एक लिमिट तक, लाइक आप 15 दिन से 1 महीने तक यूज कर सकते हैं। तो जो माइनर सेंसिटिविटी है वो चली जाएगी। अगर वो सेंसिटिविटी नहीं जा रही है और आपको ज्यादा यूज करना पड़ रहा है, दैट डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम है, उसको ट्रीट करने की जरूरत है, ट्रीटमेंट नीडेड है। क्योंकि सेंसोडाइन की एड में जो इतना बड़ा वो दिखा देते हैं, का भी अलग अलग ब्रांडिंग और अलग अलग तरीके से है। इट हैज वन पार्ट जो सेंसोडाइन रिपेयर एंड प्रोटेक्ट भी है, और एक है जो सिर्फ ठंडे गर्म के लिए है। हालांकि उनकी पोजीशनिंग जो है मोस्टली हर कोई यही सोचता है कि मतलब सिर्फ और सिर्फ ठंडे गर्म से रिलेटेड, क्योंकि एड्स में भी वो मोस्टली यही दिखाते हैं। बट ऐसा नहीं है, उनके भी अलग अलग तरीके से आते हैं। देयर आर सम न्यू मतलब इनोवेटिव पार्टिकल्स जो उन्होंने डाले हैं, नोवामिन वगैरह, जिसके कारण देयर इज सम एडवांटेज। बट एज मैम सेड कि वो एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए ही हेल्प करेगा अगर सेंसिटिविटी है तो। इफ द सेंसिटिविटी इज नॉट गोइंग इन स्पाइट ऑफ यूजिंग दैट टूथपेस्ट, देन डेफिनेटली आप डेंटल अपॉइंटमेंट या कंसल्टेशन को अवॉइड नहीं कर सकते। देयर इज समथिंग व्हिच इज डेफिनेटली रॉन्ग एंड नीड्स अटेंशन। Okay, so fluoride I guess is often come in the discussion जब हम इन सारी चीज़ों की बात करते हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट है वो सब्सटेंस, या यूज करना चाहिए नहीं यूज करना चाहिए? व्हाट आर द इफेक्ट्स एंड कॉजेज ऑफ दैट? तो जैसे बेसिक फ्लोराइड जो है ना, हमारी बॉडी के लिए हर चीज जो है ना एक मॉडरेशन में ठीक रहती है। बहुत कम या बहुत ज्यादा हमेशा गड़बड़ देता है।
तो मॉडरेशन में फ्लोराइड हमारी बॉडी को नीडेड है. इट इज वन ऑफ द न्यूट्रिएंट विच इज नीडेड फॉर आवर बॉडी एज वेल फॉर स्केलेटल मैच्योरेशन एंड अदर. बट अगर उसका बहुत ही ज्यादा मतलब एक्सट्रीम, जैसे राजस्थान जो है और स्पेशली ये एरियाज जो हैं जयपुर वगैरह या उसके आसपास के, तो वो फ्लोराइड बेल्ट में ही आते हैं. तो फ्लोराइड बेल्ट का मतलब है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है ना, उसमें फ्लोराइड का कंटेंट है वो काफी ज्यादा है. तो जब मतलब प्रेगनेंसी के दौरान लोग मतलब वही पानी पीते हैं, तो उसके दौरान जो बच्चा होता है उसके दांतों पे भी असर पड़ता है बिकॉज ऑफ दैट. तो क्योंकि इनका मैच्योरेशन और कैल्सिफिकेशन जो है वो तो अर्ली एज में ही चालू हो गया है. और उसके बाद जब बर्थ के बाद भी अगर जब चल रहा होता है तब भी अगर यही सब फ्लोराइड बेल्ट वाले एरियाज में ही अगर पानी पिया गया है, तो वो सब चीजें जो है वो बाद में अफेक्ट करेंगी. तभी मैंने बोला था कि दांतों पे अगर वो व्हाइट चकते या ब्राउन चकते हैं, तो वो जो है वो फिर अपीयरेंस वाइज और उन दांतों का इनेमल जो है वो वीक होता है, तो वो टूट भी सकता है, स्ट्रक्चर भी खराब हो जाता है. कभी कभार कुछ पिट्स भी होते हैं दांत की सरफेस पे. तो वो सब जो है फिर वो अपने हिसाब से ट्रीटमेंट का अटेंशन मांगते हैं. मोस्टली सिर्फ एक नॉर्मल ले पर्सन के लिए ये देखना चाहिए कि 1000 ppm का फ्लोराइड कंटेंट किसी भी टूथपेस्ट में होता है तो उसे फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट बोलते हैं. उससे मतलब उतना 1000 ppm इज एक्सेप्टेबल. उससे बहुत हाई पे जाएंगे तो मतलब उससे ज्यादा नीड नहीं है, डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशन. अगर किसी ने रेकमेंड किया है तो वो डिपेंडिंग ऑन क्या सिचुएशन है. ऑल्सो बच्चों के लिए फ्लोराइड वार्निशेस सजेस्ट करते हैं जो एक पतली लेयर की तरीके से काम करती है, और वो थोड़ी देर उसको लगाने के बाद, जो कि ऑब्वियसली एक डेंटिस्ट ही करेंगे, तो उसके बाद बच्चे को थोड़ी देर कुछ खाना पीना नहीं होता. दैट वुड गिव यू अ प्रोटेक्शन की फिर कैविटीज से थोड़ा बच सकते हैं. तो इट वुड गिव यू मतलब एक लाइफ टाइम प्रोटेक्शन नहीं हो सकता, बट एक मतलब एक टाइम फ्रेम के लिए वो आपको प्रोटेक्ट करेगा. ओके. जो बच्चे होते हैं उनको किस एज से ब्रशिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए? मतलब मम्मी पापा कब से उनको ब्रश करना स्टार्ट कर दें? एंड व्हाट्स द बेस्ट टूथपेस्ट? और ये मेरा ना बहुत टाइम से क्वेश्चन रहता है, क्योंकि मैंने एक बार क्या हुआ, मेरी एक छोटी नेफ्यू है, उसका टूथपेस्ट यूज करके देख लिया, वो इतना गंदा लगा है, बबल गम फ्लेवर पता नहीं क्या यूज करते हैं. और यूजुअली पेरेंट्स दिला देते हैं बिकॉज वो तो यूज करते नहीं है, बट शायद बच्चों को अच्छा लगता है वो फ्लेवर, व्हाटएवर इट इज. क्या वो सेफ होता है? या इट इज सेफ काइंड ऑफ. हाँ, जब न्यू बॉर्न होता है तो आई थिंक सर हैज कवर्ड दैट कि जो गम्स होते हैं वो वेट गॉज से साफ करना चाहिए. जैसे ही फर्स्ट टूथ इरप्ट होता है तो फिंगर ब्रश आते हैं, उससे सिर्फ पानी से क्लीन करना होता है, कोई पेस्ट यूज नहीं करनी होती. अंटिल द एज ऑफ 2 वी डोंट रिकमेंड टूथपेस्ट, क्योंकि बच्चे स्वॉलो कर लेते हैं. स्वॉलो करने से स्टमक प्रॉब्लम्स हो जाती है. तो आप अगर खाली ब्रश से भी बच्चों के दांत साफ कर रहे हैं तो उनको कैविटीज नहीं होगी. इट्स जस्ट कि आप ब्रश कर रहे हैं, सुबह और शाम को ब्रश कर रहे हैं. उसके बाद देयर आर मेनी कंपनीज जो बच्चों की पेस्ट बना रही है, कीटोडेंट है, जीरो जेल है, ये कंपनीज आप यूज कर सकते हैं. हाँ, आप डॉक्टर से पूछ के कर सकते हैं कि 500 ppm वाला फ्लोराइड का टूथपेस्ट यूज करना है या 1000 वाला. इफ किड इज प्रोन टू कैविटीज तो हो सकता है डॉक्टर्स को 1000 ppm वाला अलाउ करते. और हमेशा जो बच्चे का टूथपेस्ट का जो क्वांटिटी होता है वो एक राइस का दाना होता है, उतना ही होता है, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए. वो हम एड्स में देखते हैं ना कि पूरा लगा ऐसे करके लगाते हैं, वो इतना यूज नहीं करते. पेस्ट अगर हम बोले तो बच्चे और एडल्ट्स के लिए खाली फ्रेशनेस का काम करते हैं. क्लीनिंग तो ब्रश करता है खाली. ओके. तो इसलिए मतलब अगर खाली ब्रश से भी हम ब्रश कर लें रोज तो भी आपके दांत साफ रहेंगे. साफ तो हो ही सकते हैं. ओके. हमें सिर्फ फ्रेशनेस फील करने के लिए ना हम पेस्ट मोस्टली यूज करते हैं, जो क्लोजअप की एड्स में आती है फ्रेशनेस. ओके. अगर हम एक बच्चे को देखते हैं, ठीक है, और उसका ये जो रूटीन है ये हम लेके चलते हैं फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो आप और क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस सजेस्ट करेंगे उन बच्चों को, पेरेंट्स को, ताकि वो बच्चों की ओरल हाइजीन को मेंटेन करके रख सकें? सो आपने सुना होगा बच्चे ना सुन के नहीं करते हैं, देख के करते हैं. तो जो पेरेंट्स करते हैं वही बच्चे करते हैं. तो अगर मम्मी पापा सुबह शाम ब्रश कर रहे हैं तो बच्चे सुबह शाम ब्रश करेंगे. मम्मी पापा फ्लॉस कर रहे हैं तो वो फ्लॉस करेंगे. तो यही प्रैक्टिस अगर हम रखेंगे कि मम्मी पापा, उनको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप करिए, दे विल फॉलो यू.
दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस आई क्यूरियोसिटी कैन। भी रहती है बच्चे में, तो वो भी फॉलो करने की इच्छा रहती है। हालांकि कभी कभार आजकल मार्केट में कुछ कुछ अलग अलग सजेस्टिव चीजें भी हैं, जैसे मतलब इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रशेस भी हैं। तो जस्ट टू क्रिएट दैट क्यूरियोसिटी अमंग द किड्स आप एक ऐसा कभी दिला भी सकते हैं, या एक नॉर्मल ब्रशेस के भी 1 या 2 वेरिएंट्स रख सकते हैं। तो समडे जस्ट टू हैव फन आप बच्चे से ये भी पूछ सकते हैं कि आज किस कलर वाले से करना है या आज कौन सा यूज करना है। बट मतलब वो इंडिस्पेंसिबल है कि वो नहीं छोड़ सकते, मतलब हमें करना ही है। ब्रशिंग इज इम्पोर्टेंट, ब्रशिंग तो करनी ही है। तो ये अगर मैं बोलूँ ये तो हो गई गुड पेरेंटिंग। इंडियन पेरेंटिंग की अगर मैं बात करूँ तो बिकॉज माँ बाप तो इंडिया में तुझे ये करना है, मैं कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बड़ा हूँ बेटा, ठीक है तुझे ये करना है। सो नाउ पेरेंटिंग स्टाइल्स आर चेंजिंग। मतलब पहले इतनी, मतलब आपने कहाँ इतने वीडियोस देखे थे जो पेरेंटिंग सिखा रहे थे। नाउ द टाइम्स हैव चेंज, तो इंडियन पेरेंट्स भी चेंज हो रहे हैं, काफी अवेयरनेस आ रही है। पहले तो दूध की दांत घिर जाएंगे, नए आ जाएंगे, नहीं आते थे। अब हमारे पास आते हैं पेशेंट्स की मैम इसकी कैविटी दिखी तो उसको फिल कर दीजिए। तो दैट वेज आई से कि इंडियन पेरेंट्स काफी इम्प्रूव हो रहे हैं और काफी ध्यान देते हैं। मतलब हम खुद पे ध्यान देना दें, बच्चे पे 100% ध्यान दे रहे हैं। तो अगर बस इतनी सी सलाह इंडियन पेरेंट्स मान लें कि आप खुद ब्रश करना चालू अपने क्योंकि आपके दांत भी उतने इंपॉर्टेंट हैं जितने बच्चों के हैं। तो अगर आप लोग भी मतलब रात को तो 100% ब्रश करना ही करना है, तो बच्चों को कोई नहीं रोकेगा ब्रश करने से, वो अपने आप फॉलो करने लग जाएंगे, आपको लड़ना ही नहीं पड़ेगा उनसे। ओके, व्हाट आर द की इंडिकेटर्स कि आपको अब एक ऑर्थोडोंटिस्ट के पास या फिर एक डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा? सो जैसे आई मेंशन्ड कि 7 इयर्स वैसे तो एक एज रेंज हो ही गई कि इस एज पे पेशेंट आ सकता है एक कंसल्टेशन के लिए। बट एज एन एक्सटर्नल अपीयरेंस के हिसाब से देयर हैव बीन लॉट मेनी इंस्टेंसेस जिसमें हम कभी किसी पार्टी में गए हैं और हमारे किसी नोन सर्कल के किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम दिखी मुझे, तो मैंने मेंशन किया, फिर शी मेंशन्ड इट टू द पेरेंट एंड देन दे डेफिनेटली केम बैक एंड गॉट द ट्रीटमेंट। सो ऐसा होता है। देयर आर अ फ्यू इंडिकेटर्स, हमें बस ये देखना है प्रोफाइल मतलब कि हमारा नोज, लिप्स और चिन का एक रफ रिलेशनशिप। अगर ये बहुत ही पीछे लग रहा है तो ये जॉ छोटा है। ओके। और अगर ये बहुत ही आगे है या और ये पार्ट कम लग रहा है तो इसका मतलब है कि ये जॉ छोटा है। तो हमें डिपेंडिंग ऑन ये, क्योंकि ये जो है वो ग्रोथ फेज के दौरान ही मोस्टली ब्रेसेस का ट्रीटमेंट 12-13 साल में स्टार्ट करते हैं, पर अगर उससे पहले ये इसका ट्रीटमेंट करा जाए तो काफी हद तक चेंजेस उस दौरान ही आ जाएंगे। 11 to 12 years would be the best age. Also गर्ल्स में और बॉयज में भी डिफरेंस रहता है, बिकॉज मेच्योरेशन का एज जो है वो गर्ल्स के अंदर जल्दी होता है। तो आजकल मोस्टली ऐसा देखा है कि 10 साल पे मतलब बच्चियों के दांत सारे आ चुके होते हैं और वही 11 या 12 साल तक अभी लड़कों के आ रहे होते हैं। तो इसी तरीके से जो ग्रोथ का मॉडिफिकेशन है वो मतलब लड़कियों में जल्दी अटेम्प्ट करना होता है एज कम्पेयर टू बॉयज। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हमें कब किसी चीज को मतलब करेक्ट करना है। सो प्रोफाइल इज द मेजर फैक्टर एंड डेफिनेटली अगर वो आते हैं और दिखाते हैं तो इंट्राओरली मतलब अंदर चेक करके तो फिर ऑब्वियसली सारी चीजें समझाई जा सकती हैं। बट बाहर से देख के ये लगता है कि भाई ये छोटा है या ये अंदर है, तो उसको उस हिसाब से सजेस्ट करके ट्रीटमेंट करा जा सकता है। टेढ़े मेढ़े दांत के लिए आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर दांत ही सिर्फ अपना फोकस है तो वो फिर भी 12-13 साल पे ट्रीटमेंट हो सकता है, 14 पे भी हो सकता है। आज की डेट में पहले जैसे आपने कहा कि इंडियन सिनेरियो में लोग इतना ज्यादा कंसर्न पहले नहीं थे, तो हो सकता है कि उन्होंने उस टाइम पे नहीं कराया। बट आज की डेट में देयर हैज बीन अ सर्ज इन अडल्ट पेशेंट्स, बिकॉज हो सकता है कि अब वो अपना बिजनेस या अपना जॉब या अपना इनकम जनरेट करने लग गए हैं एंड दे वुड वांट टू सेल्फ फाइनेंस देमसेल्व्स। तो अलाइनर्स या ब्रेसेस करवाने के लिए, अलाइनर एक कैटेगरी मोस्टली अडल्ट्स के लिए काफी हद तक हेल्पफुल है, क्योंकि अगर उनका प्रोफेशन ऐसा है जिसमें वो बिल्कुल नहीं दिखाना चाहते तो भी वो ट्रीटमेंट हो सकता है। मतलब जो कैटेगरी पहले इतनी ओपन नहीं हो सकती थी वो आज की डेट में फिर भी ओपन हो गई है एंड मेनी पेशेंट्स आर कमिंग फॉरवर्ड फॉर ट्रीटमेंट, क्योंकि वो उस एज पे नहीं हो पाया था। सो इस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप किसी में शाइनेस ऑफ स्माइल देखें या कोई फोटो खिंचवा रहा है, मुंह नहीं हो मतलब हंस नहीं रहा है, कॉन्फिडेंस लो लग रहा है,
तो डेफिनेटली एक बार डेंटल चेकअप की जरूरत होती है, बिकॉज हमें नहीं पता होता, कभी कभार हम अपनी दांतों की प्रॉब्लम छुपाने के लिए अपने दिल खोल के नहीं हंस पाते हैं, तो दैट मे बी अ इंडिकेटर फॉर द सेम। यू टॉक अबाउट, आपने एक वर्ड बोला, इट इज अलाइनर्स, राइट? तो अलाइनर्स क्या होते हैं अभी? क्योंकि मैंने देखा कि ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा अलाइनर्स की डिमांड बढ़ गई है और वो सेल आउट भी बहुत अच्छे से हो रहे हैं। लोग किसी भी तरीके के अलाइनर्स मंगा सकते हैं, इसमें भी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स और डिमांड्स होती हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं व्हाइल बाइंग एनी गुड अलाइनर? सर देखो, मोस्टली है ना, इट्स नॉट अ कॉमोडिटी, ओके। राइट? मोस्टली लोग ऐसा सोचते हैं कि इट्स अ कॉमोडिटी, बट इट्स नॉट अ कॉमोडिटी विच हैज टू बी जस्ट बॉट ओवर अमेजोन या एक ABCD से। बट ओनली थिंग इज कि इट नीड्स सुपरविजन। कोई भी ट्रीटमेंट अगर आपको पता भी है तो भी आप अपने आप दवाइयां लिख के सब कुछ ट्रीटमेंट अपना नहीं कर सकते। एक डॉक्टर को भी कभी ना कभी किसी डॉक्टर की नीड पड़ती है, जब उसे नीड होती है तो एक नॉर्मल पेशेंट को भी एक डॉक्टर की नीड और उसका सुपरविजन चाहिए। तो कोई भी ट्रीटमेंट कराएं, आप किसी भी अलाइनर से कराएं। देखिए, देयर आर लिमिटेशंस ऑफ ईच एंड एवरी मेथड। कुछ अलाइनर्स हैं जो हर तरीके से मतलब ट्रीटमेंट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट इंडिया में भी बहुत हुआ है। जो अलाइनर सिर्फ US UK में ही बनते थे, अब इंडिया में भी हम ऑलमोस्ट वैसे अलाइनर्स बना सकते हैं। ट्रीटमेंट का रिजल्ट भी ला सकते हैं, बट उनमें कभी कभार कुछ लिमिटेशंस होती हैं। हर केस नहीं ट्रीट हो सकता, तो वो जजमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक डेंटिस्ट या ऑर्थोडोंटिस्ट प्रेफरेबली ले सकता है और आपको अच्छी तरह गाइड कर सकता है। सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप जो भी ट्रीटमेंट कराएं हमेशा किसी के सुपरविजन में कराएं, नॉट विदाउट एनी सुपरविजन। सो आई वांट टू ऐड इन दिस कि जो ब्रेसेस या अलाइनर्स का ट्रीटमेंट होता है उसमें हम अपने दांतों को मूव कर रहे हैं। उसमें देयर इज लॉट ऑफ फिजिक्स इन्वॉल्व। अगर हम खाली कंपनी के थ्रू या डायरेक्टली कहीं से लेते हैं, हमें नहीं पता अंदर हमारी क्या फिजिक्स चल रही है, हमें नहीं पता दांत कैसे अलाइन करने, किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हम खाली पहन लेते हैं। तो जब तक हम रियलाइज करते हैं कि हमने कुछ डैमेज कर लिया, तब तक बहुत लेट हो चुकी होती है। तो इट्स बेटर कि हम किसी के सुपरविजन में करें, ना कि अपने आप हर चीज अटेम्प्ट करके और चीजें जस्ट बिकॉज वो सस्ती है या वो इजीली अवेलेबल है हम उसको यूज करने लग जाए, क्योंकि हमें उसके साइड इफेक्ट्स नहीं पता, हमें नहीं पता कि राइट वे क्या है उसको पहनने का, करने का। तो हमेशा कोई भी प्रोफेशनल चीजें हैं तो उसको आप अंडर डॉक्टर ही करें, बिना उसके सुपरविजन के। आई वुड नेवर सजेस्ट कि आप उसको अपने आप से करें। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ऐसा होता है कि कभी कभार उन्होंने ऑनलाइन सिर्फ और सिर्फ सर्च करके या किसी और मेथड से करके मंगवा लिया, 2-3 अलाइनर्स के सेट्स पहन भी लिए, बट उस पॉइंट के बाद ऐसा जरूरी नहीं है कि जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो उन्हें मिला नहीं मिला। ये असेस करना ज्यादा जरूरी है कि क्या उन्हें वो जो रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए था वो मिला या नहीं मिला, क्योंकि फिर वो कहीं बीच में ही रह जाते हैं ना। तो उन्होंने, क्योंकि किसी के सुपरविजन में हुआ नहीं, तो वो किसी को कह भी नहीं सकते। जो उन्हें बोला था वो उन्हें मिल भी गया लेकिन रिजल्ट आया नहीं, तो इट्स लाइक अ विशियस सर्कल अगेन। तो हमें ऐसा लगता है कि वो वर्क ही नहीं करता है, तो ये मिथ ऐसे धीरे 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 आने लग जाती है। यस। अभी व्हेन यू वर लाइक अराउंड 2008 की हम बात करें, जब आपने सारी अपनी स्टडीज और ये सब कंप्लीट की, उस टाइम भी मुझे लगता है इतना ज़्यादा इन डिमांड नहीं था डेंटल इंडस्ट्री में, राइट? अभी आपको क्या लगता है कितना ज़्यादा स्कोप है आगे वाले टाइम में? अगर जो बच्चे अभी कॉलेजेस में हैं या जो सोच रहे हैं कि हम एज अ डेंटिस्ट्री अपना प्रोफेशन लेके चल सकते हैं, तो कितनी डिमांड और स्कोप लगती है आपको इंडिया जैसे कंट्री में? सर स्टिल देयर इज, मतलब अगर आप रेशियो देखेंगे तो बहुत कम डेंटिस्ट है इन कंपैरिजन टू पॉपुलेशन। पर डेंटिस्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं होती है। ओके। सो इसलिए ट्रीटमेंट कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है और पेशेंट इतनी इजीली कन्विंस नहीं होता है। तो सबसे पहले जो जरूरत है वो है डेंटल अवेयरनेस बढ़ाने की। तो जो यंगर जनरेशन है, आई वुड सजेस्ट कि पहले थोड़ा सा, जैसे मेडिकल में भी एक कंपल्शन होता है कि विलेजेस में जाके काम करने का, वैसे ही डेंटल में भी जरूरत है थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ाने का, विलेजेस में जाके ट्रीट करने का। बिकॉज जब हम एक प्रोफेशन में होते हैं तो ये हमारी ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है
कि हम लोगों को ठीक करें। जब हम इस पैशन से काम करते हैं तो ऑब्वियसली फिर देयर इज नो बार कि हम कहाँ तक पहुंच जाते हैं। तो जस्ट निकलते ही हम सोचें कि हम क्लिनिक डाल के वी जस्ट ग्रो लाइक एनीथिंग, ऐसा नहीं होता। हर चीज की ग्राउंड रियलिटी होती है। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू गेन एक्सपीरियंस एंड देन आप यू कैन स्काई रॉकेट। बट उससे पहले आपको हर जगह जाके काम करना पड़ेगा, आपको चैरिटी भी करनी पड़ेगी, आपको सीखना भी पड़ेगा। हर चीज करके जब हम स्टेज वाइज काम करते हैं तो ऑब्वियसली एवरीथिंग हैज अ गुड स्कोप, मतलब क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है कि आराम से सब कर सकते हैं। अभी भी इवन अगर मैं इनोवेशन की बात करूं तो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं बैंगलोर के और दिल्ली के जो कि सिर्फ डेंटिस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं, दांतों के ऊपर काम कर रहे हैं, और द स्टार्टअप्स आर ग्रोइंग इन इटसेल्फ बहुत ज़्यादा फंडिंग्स के साथ, चाहे वो किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हुई, चाहे वो ब्रेसेस हुए, चाहे वो अलाइनर्स हुए, राइट। तो स्टार्टअप्स भी बहुत ज़्यादा जो इंक्यूबेटर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंक्यूबेट कर रहे हैं ऐसे डेंटल वाले स्टार्टअप्स में। इवन जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जितने हैं ना, ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ द स्टार्टअप्स गॉट सक्सेसफुल बिकॉज फंडिंग मिल जाती है, एंड वो ऑल द लाइक दीज काइंड ऑफ स्टार्टअप्स आर प्रोडक्ट बेस्ड। तो उनके प्रोडक्ट इतने सॉलिड हो रहे हैं बिकॉज इतनी अच्छी इनोवेशन आ रही है आज के टाइम में, और वो चीज़ जैसे ही किसी इंसान के ऊपर इम्प्लीमेंट की जाती है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है, राइट। तो अगर कोई भी देख रहा है इस वाली फील्ड में जाने का तो वो इसको एज अ बिजनेस भी लेके जा सकता है, राइट। बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है इफ यू क्रिएट सम यूनिक प्रोडक्ट दैट कैन बूम अ लॉट इन इंडिया मार्केट, राइट। सो इनोवेशन तो हमेशा एक स्टैंड पॉइंट रहता ही है हर किसी फील्ड के लिए। So dentistry is also not an exception. Like ये scanner आया ना, now it was like a must in every clinic कि इतना ease हो गया, comfortable हो गया है। पहले impression से लोगों को gagging होती थी, mouth opening की problem होती थी, तो ये scanners are like मतलब बहुत easy हो गई हैं चीजें। तो इसलिए जैसे 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 हम काम करते हैं हमें समझ आता है कि हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट है, उसका इनोवेशन होता है, तो ऑब्वियसली देयर इज अ ह्यूज स्कोप ऑफ थिंग्स कि हम करें। अगर आप किसी से पहले का पूछेंगे ना तो सबसे पहले लोग जाते थे ना तो वो एक्सरे लेते थे ना, फिर उसको फिल्म में डाल के वो डेवलप होती थी, फिर वो ऐसे करके देखते थे। उसके बाद धीरे धीरे करके वो डिजिटल एक्सरे होने लगे, आरवीजी बोलते हैं उसे। तो वो नेक्स्ट इनोवेशन हो गया कि अब वो हर क्लिनिक में धीरे धीरे जो भी क्लिनिक खोलता है सबसे पहले वो आरवीजी और एक्सरे लेके ही रखता है। अब धीरे धीरे समय आता जा रहा है कि लोग धीरे धीरे अब स्कैनर्स को अपना रहे हैं। तो मतलब देयर इज ऑलवेज अ राइजिंग कर्व for each and every new thing. तो definitely उसकी acceptance उसी हिसाब से है। Any message to the audience about anything what you're doing? कोई भी ऐसा मैसेज जो आप देना चाहते हो, bluntly audience को बोलना चाहते हो कि ये तो कर लो? It's just that कि 6 महीने में चेकअप कराना बहुत जरूरी है। अपने दांतों का ध्यान रखो। प्लस एज इज नो बार, हर एज में दांतों की इम्पोर्टेंस अपनी होती है। आई वुड तो से कि आपके जो घर में एल्डर्स हैं उनको आप सबसे पहले डेंटल चेकअप कराइए, उनके दांत लगवाइए, क्योंकि अगर आप उनको अच्छा न्यूट्रिशन देंगे तो मेडिसिन तो अपने आप गायब हो जाएगी। एंड यस, जो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ये सब कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होते किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, नॉट इवन सर्जरी, नॉट इवन डेंटल इम्प्लांट्स। ये बहुत बड़ा मिथ है कि अगर हमें डायबिटीज है तो हम दांत नहीं लगवा सकते। हर चीज अगर हम कंट्रोल करके करते हैं अंडर सुपरविजन, हर चीज पॉसिबल है। एंड गुड न्यूट्रिशन इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन। तो प्लीज अपने दांतों का ध्यान रखिए। दैट्स अ मैसेज फ्रॉम माय साइड। मैसेज फ्रॉम माय साइड इज कि डेफिनेटली आप राइट एज पे बच्चे को लेके आए ताकि जो ग्रोथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना वो मिस आउट नहीं हो जाए। ओके, 7 years एज आई मेंशन्ड इज द की एज जब एक बार आना चाहिए, उसको मिस आउट मत कीजिए। दैट माइनर कंसल्टेशन फी वुड नॉट पिंच योर पॉकेट लेटर ऑन, क्योंकि अगर मान लीजिए कि somebody says कि अब ये चीज हो ही नहीं सकती, उससे अच्छा है ना कि हम पहले ही एक बार दिखा दें। एंड देन द डेंटिस्ट विल, ऑर्थोडोंटिस्ट विल कीप यू इन द लूप। हर 6 महीने या साल भर में बुला के वो आपको राइट एज पे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। सो डोंट लूज अपॉन दैट, एंड दैट वुड सेव यू अ लॉट ऑफ मनी एज वेल, बिकॉज लेटर ऑन अगर आप कोई हायर मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट पे जाते हैं
तो वो ज्यादा ही महंगा होगा एज हम्म। कम्पेयर टू अगर हम जितना अर्ली एज पे ग्रोथ को यूज करके करें. तो डेफिनेटली गो फॉर ब्रेसेस, डेफिनेटली गो फॉर अलाइनर्स. सो वी आर देयर एट सिटी कॉलोनी, Smiles and Braces Dental Clinic. Smile beautifully. Okay. So first, thank you so much, ma'am and sir, for being here and part of our family. Thank Yeah. you for giving us this opportunity. Thank you Yeah. for giving us this opportunity. Okay, thank you.